already, you might have used or you might have learned about it in your classes, or some of you might have used already. This is the small version of the benchtop XRD which you already have. This is benchtop and that is flow standing. Flow standing XRD is made to do a lot of applications. Application means a type of measurement. Type of measurement is called an application in this case. So powder diffraction is just one type of measurement. So this machine is made to do powder diffraction only. That machine, big machine, can do powder diffraction, grazing incidence, X-ray diffraction for thin films, with residual stress measurement, reciprocal space mapping, or epitaxial layers, many kind of measurement. But this can only do powder diffraction. This can also do, with some upgrades, it can also do thin films, grazing incidence, X-ray diffraction. But right now you don't have it. Right now all you have is powder diffraction. First thing, when we say powder diffraction, we don't mean the sample has to be powder. We actually mean multicrystalline sample. Powders are multicrystalline, polycrystalline. So that's why we say powder diffraction, but we actually mean polycrystalline diffraction. A diffraction of polycrystalline sample. So even if a solid is polycrystalline, that can also be done here. But powders are inherently polycrystalline, that's why we say powder diffraction. Okay, so this is the first and foremost thing. Powder diffraction does not mean your sample has to be powder. It can be a solid. A piece of copper, a piece of iron, they are usually polycrystalline. So they can also be treated in the machine. Okay. Now a diffractometer uses some X-rays through some X-ray tube. Most popular choice is copper. Why? Why do you use copper? Any idea? Why do you use copper radiation mostly? In almost every machine you see copper radiation. So tubes exist for a lot of X-rays can be extracted from any element. इसको वर्क फंक्शन कम होता है, इजीली वो मतलब होल्ड डाउन नहीं हो सकता. वर्क फंक्शन तो यहाँ पर काम नहीं आएगा क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन्स सरफेस से नहीं निकालने. You need X-rays. So we need X-rays with wavelength comparable with the d spacings. So Bragg's law आप सबने पढ़ा है. N lambda is to d sin theta. So if you want, the left hand side of the equation has few angstroms, 1 to 2 angstroms. तभी आप d values जो 1 to 2 angstroms की होती स्कैन कर पाएंगे. लेफ्ट साइड और राइट साइड का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए. अगर d values, d is inter-atomic spacing. So most of the atoms are spaced between 1 to 10 angstroms. 10 angstroms in bigger, large cases like zeolites, कुछ samples ऐसे होंगे जहाँ पर आपको ज़्यादा d values मिलेंगे. लेकिन in general, it will be between 1 to 10 angstroms. So you need a tube which also emits wavelength comparable to that. Now, lower elements, higher elements, they will have different wavelengths. Depending now which factor contributes to which wavelength it will emit. That depends on which electron you are exciting. When electrons are closer to nucleus, they have more energy. So when you excite them, they will give out more energy. Right? So copper K shell. When these electrons are excited, and when they de-excite, they emit X-rays. L shell is outer shell that will emit the colors, visible colors, या ultraviolet. और बाद में आपके पास K, L, M shell. So if M and L they have higher energy, they have lower energy, K has higher energy. So K is the one which will excite to get wavelengths in few angstroms. Now K shell has some subshells. K alpha 1, alpha 2. Alpha, then alpha also has a doublet. Alpha 1, alpha 2. Then it also has beta. And beta is a triplet. Beta 1, beta 2, beta 2. If you excite this K electron, you will get X-rays and you will get all 5 wavelengths. You cannot selectively excite a K subshell. That is not possible. Now, before going to that, what after excitation, let's see how we excite. So, how can you excite an electron? In general, how do we excite electrons? By heating the material. Sometimes you can excite an electron by heating. So, but here it won't work because by heating you cannot produce that much of energy. In quantum mechanics, you can calculate the K shell की energy कितनी. It's 8 keV. K alpha 1 has energy which is 8 keV. So a single atom has 8 keV. So you can calculate 1 mole of atoms, how much energy it would require. 1 mole is how many grams of copper. Accordingly, you can find out कि अगर copper का बेस इतना है और उससे मुझे X-ray निकालनी है तो कितनी energy लगेगी. That you can calculate. So thermal energy will be too much, and copper will melt before it. Before it gets excited, it will melt. So heat will not work. High voltage. So electric fields, but again you will find that it is too much of energy required to produce those electric fields which can emit X-rays. Magnetic fields again, the magnetic fields will also be too much. Right. So the simplest way is to excite an electron by hitting it with another electron.
which has the same energy. तो K shell की energy हमें पता है 8 kV. अगर हम वैक्यूम में 8 kV का ही इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करें और उसको हिट करें कॉपर के एटम में, तो it will excite K shell. It will give its energy, right? And when it de-excite, it will emit that 8 kV. And that 8 kV will be X-rays. So you are giving input as electron, you will get output as X-rays. This is what happens inside the tube. मैं अभी खोल के आपको दिखाऊंगा. Left side में there is a tube and we provide this energy. Now how do you provide energy to electron? Kinetic energy हम बढ़ा. तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? इट्स अ नेगेटिव चार्ज, so you give positive charge. Right? So it will get attracted to us. So उसकी velocity बढ़ेगी तो kinetic energy बढ़ेगी. All this is easy to calculate. So you know how much of kilovolts you require to excite an electron to have 8 kV. This is 30 kV. 30 kilovolts is what we will apply to get this right energy of copper. Actually, it starts emitting beyond 17 or 18 kV. So, right. So, but there are two kinds of X-rays: continuous and characteristic X-rays. Continuous X-rays are useless for us because they don't have one wavelength. In Bragg's law, we want one wavelength. We don't want a lot of wavelengths. Otherwise, we won't get constructive interference में हमें एक सिंगल पीक नहीं मिलेगा. एक सिंगल लैम्डा होगा तो सिंगल डी वैल्यू के लिए एक सिंगल थीटा होगा. बट अगर बहुत सारे लैम्डास होंगे, डी वैल्यू एक ही होगी, बहुत सारे थीटास होंगे, तो आपको कोई पीक नहीं मिलेगा. ऐसा बहुत ब्रॉड मिलेगा, बहुत ब्रॉड एक एमिशन मिलेगा, उससे यू कैन नॉट कंक्लूड एनीथिंग. सो कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशंस आर व्हाट यू वुड नीड, कंटीन्यूअस रेडिएशंस आर व्हाट यू डोंट नीड. सो एक्सरे एमिशन काफ़ी पहले शुरू हो जाता है K shell से, बट वी स्टिल एक्साइटेड मोर बिकॉज वी वांट टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज इन कंपैरिजन टू कंटीन्यूअस एक्सरे. This is what happens at 30 kV. After 30 kV, percentage of characteristic radiation is more than continuous radiation. Continuous radiation makes background, and characteristic radiation is going to give you peaks. So you want less background and more peaks. Peak is your signal, background. So you want good signal to noise ratio. In every experiment, you want to have signal to noise ratio. So signal ज़्यादा, background कम. उसकी वजह से आप ऐसी वोल्टेज से एक्साइट करोगे जहाँ पर आपको सिग्नल यानी पीक ज़्यादा चाहिए. दैट इज व्हाई यू हैव 30. व्हाट इज दिस एम्पियरेज? करंट. तो करंट बाय डेफिनेशन इज चार्ज पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर गिवन. इलेक्ट्रॉन्स को कैसे प्रोड्यूस करते हैं? बाय एक्साइटिंग इट थर्मली. टंगस्टन का एक फिलामेंट है, उसको एक नीडल शेप टिप के शेप में हम लेके आते हैं, उस पर ये वोल्टेज लगाते हैं और उस पर ये करंट भी, हम उसको इतना करंट दे रहे हैं और उसका एक वोल्टेज. Beyond certain voltage, it will start emitting thermal electrons from that tip, and these electrons are what we will excite. सर ये जो कंटिन्यूअस एक्सरे एमिट हो रही है, so this is due to the de-acceleration of the electron, right? तो ये एक्सेलरेटर रिंग्स हैं, उससे चार्ज ट्रैवल कर रहा है, उसकी वजह से दूसरा कॉपर का भी क्रिस्टल है, क्रिस्टल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एंड चार्ज इज ट्रैवलिंग थ्रू दैट, राइट? सो दैट आल्सो मेक्स कंटिन्यूअस एक्सरे. अब करंट जितना ज़्यादा देंगे, इलेक्ट्रॉन्स उतने ज़्यादा मिलेंगे, उतनी ज़्यादा एक्सरेज बनेंगे. बट देयर इज अ लिमिट. दैट लिमिटेशन अराइजेस फ्रॉम द फैक्ट दैट दिस एनर्जी ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू एक्सरेज इज वेरी इनएफिशिएंट. Only 1% of energy becomes X-rays. 99% of energy becomes heat. तो हम जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ लगा रहे हैं, you can calculate hour is 300 watt. So you're giving 300 watt, but you're getting only 3 watt as X-rays. बाकी 99% heat जो बनी, that will melt copper if you don't remove. So we have a glycol water-based solution which is cooling the thing, and this puts a limit to this much current. Beyond this current, this heat exchanger will not work. This heat exchanger is optimized for this current. That is why you cannot put more current there. In bigger machines, you cool with chilled water, so you can give more currents, and then you can get even more X-rays, and you can get even more X-rays in a input. On your requirement, sometimes you don't require too much of brightness. Sometimes you can. So brighter the source, shorter can be your scans. अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी है तो मैं कम टाइम में यही ग्राफ ले सकता हूँ, अच्छे सिग्नल टू नॉइज रेशियो के साथ. कम ब्राइट है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा. सो वी ऑप्टिमाइज दिस मशीन टू गिव यू अ गुड डेटा ऑन अ गुड क्रिस्टलाइन सैंपल बिटवीन 5 to 30 minutes, डिपेंड ऑन द. ओके,
यूजुअली 30 मिनट से ज़्यादा आपको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। किसी किसी सैम्पल में जो ज़्यादा क्रिस्टलाइन नहीं है वहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। सो इन जनरल दिस इज़ द बेसिक्स ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन। एक्सरे डिफ्रैक्शन को पूरा मैं रिवाइज नहीं करूँगा। एक्सरे डिफ्रैक्शन यू ऑल नो दैट इट इज़ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, राइट। पीक मीन्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो जब डी स्पेसिंग मैच हो जाती है, इट इज सच दैट Bragg law is satisfied, then you have constructive interference. And constructive interference means sudden jump in intensity. This is what you are observing, sudden jump in intensity. And this happens exactly at a particular angle. Your D value dependent. So you measure the angles to calculate D. And this has been done over hundreds of years. पिछले 100 साल से हमारे पास Bragg's law है और इंस्ट्रूमेंट है। तो इन 100 सालों में लोगों ने लगभग सारे मटेरियल्स जो हमारे पास हैं उनको एक्सआरटी करके उनका स्ट्रक्चर डिफाइन करके उसकी लाइब्रेरी बना ली। लाइब्रेरी में कुछ नहीं है, डी वैल्यूज, अलग अलग डायरेक्शंस में HKL वैल्यूज़ के साथ डी वैल्यूज़ और ऊपर लिखा हुआ है। मैं एक्सपेरिमेंट करूँगा अपने सैंपल को, मेरे को एक सेट ऑफ डी वैल्यूज़ मिलेंगी, मैं कंपेयर करूँगा विद द लाइब्रेरी टू फाइंड आउट व्हाट इज इन माय सैंपल। सो सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड बोथ आर क्यूबिक स्ट्रक्चर्स, बट क्योंकि सोडियम और क्लोरीन वर्सेस पोटेशियम क्लोराइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, बॉन्ड लेंथ डिफरेंट है, उस क्यूब का साइज डिफरेंट है। क्यूब का साइज डिफरेंट है तो डी वैल्यूज डिफरेंट है, डी वैल्यूज डिफरेंट है तो सारे एंगल्स डिफरेंट है जहाँ पर उनकी पीक्स आएंगी। तो मैं चेक कर सकता हूँ कि मेरी पीक सोडियम क्लोराइड से मिल रही है, पोटेशियम क्लोराइड, टू फाइंड आउट विच वन आई। So this is what we do in an experiment. So whenever you make any material, this is what you want to do. In a bigger machine, you can do much more complicated exercises. You can do this exercise with respect to temperature, जैसे तो high temperatures, low temperatures, और फिर phase transitions देख सकते हो कि जब आप material को heat करते हो तो how crystal lattice distorts to become another crystal lattice, and these kind of experiments can do. Here you can't do. Here you can do only room temperature experiments. सर एक पैटर्न से रिलेटेड इक्वेशन था कि क्या कोई ऐसा मटेरियल है जिसका XRD नहीं है, बिल्कुल फ्लैट लाइन है? नहीं, आई मीन फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट। फ्लैट आएगा अगर, अच्छा क्वेश्चन है। पीक्स को देखने की दो कंडीशन यूजुअली बुक्स एंड आर्टिकल्स में एक ही लिखे हैं, दैट इज Bragg law should be satisfied, but there is an additional condition. That condition depends on orientation of sun. Suppose these are the planes, ये atomic planes है, it's separated. So when these planes are oriented in such a way that normal vector of this plane and incident beam and diffraction beam, they are coplanar, only then a peak appears. When they are not coplanar, suppose ये इसको plane को ऐसे grow होना था और वो थोड़ा सा डिफेक्ट की वजह से टिल्टेड वे में ग्रो, अब कोप्लेनर नहीं है तो उसकी पीक नहीं आएगी। जो प्लेन जितना कोप्लेनर नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है ग्रोथ के दौरान ग्रो हो, कुछ 20% प्लेन्स अच्छा ग्रो हुए, उसके बाद डिफेक्ट आना शुरू और 80% डिसलाइन, तो आपको 20% ही इंटेंसिटी मिलेगी, एक्सपेक्टेड थी 100%, क्योंकि सिर्फ 20% प्लेन्स ही राइटली अलाइंड है। ये प्रॉब्लम पॉलीक्रिस्टलाइन सैंपल में कम, लेकिन एपिटेक्शियल लेयर्स जहाँ और या सिंगल क्रिस्टल, मान लीजिए सिंगल क्रिस्टल इज ग्रोन अलोंग 100, बट surface of sample is along 111. So now sample is not aligned to diffracting. You will not see anything. This is what we have done to make a sample holder. ये silicon single crystal है और इसका top surface is an atomic plane which has its first peak close to 90 degrees. Does not have any peak up till 90 degrees. This we use as a sample holder for very less quantity of sample. Because if I have a very small quantity of sample, I can fill only this much cavity. इतना ही sample है। अब इसको रखेंगे तो एक्सरेज अगर इसके ऊपर पड़ेंगे तो इसका कोई सिग्नल नहीं। क्यों नहीं सिग्नल? क्योंकि इसके ये जो एटॉमिक प्लेन्स हैं इनकी डी स्पेसिंग ऐसी है कि उसका 90 डिग्री के आसपास उसका पीक है, तो वी विल नॉट स्कैन अप टिल 90 डिग्रीज। लाइक इन दिस सैंपल एक्चुअली आई एम डूइंग दिस 70 डिग्री तक स्कैन किया तो मेरा सैंपल होल्डर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ऐसे आपको ग्लास स्लाइड अवॉइड कर सकते हो। यूजुअली ऐसे केसेस में अदरवाइज आप ग्लास स्लाइड यूज़ करते थे कि ग्लास अमॉर्फस है और सैंपल क्रिस्टलाइन है, तो मेरे सैंपल के कारण मेरा सिग्नल आएगा और ग्लास स्लाइड का सिग्नल आएगा। बट अमॉर्फस थिंग्स दे प्रोड्यूस a hump, they don't produce peak, but that hump will come if you use glass slide, and you cannot segregate the contribution of sample. हो सकता है सैंपल में भी कुछ पार्ट अमॉर्फस हो और ग्लास भी अमॉर्फस हो, तो कितना परसेंटेज ग्लास का कंट्रीब्यूशन है, कितना परसेंटेज सैंपल का, उसको सेग्रीगेट नहीं करते। दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड इफ यू यूज, ठीक है। तो दिस इज दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अ जीरो बैकग्राउंड होल्डर। दिस इज सिंगल क्रिस्टल्स सिलिकॉन, ठीक है। ये दो पीसेस हैं, एक यूज हो रहा है और एक यहाँ पर एग्जैक्टली सेम, दे ऑलवेज कम इन पेयर। सर एक जैसे लिक्विड सैंपल है हमारे पास तो उसको सॉल्वेंट वगैरह में यूज़ करते हैं, सॉलिड को लिक्विड में
मिक्स करते हैं, तो क्या लिक्विड का कुछ आएगा पीक या फिर सो लिक्विड अगर क्रिस्टलाइन होगा या लिक्विड का कुछ भी पार्ट क्रिस्टलाइन होगा तो उसका पीक है। कहें कि एक और कंडीशन है, कोई ब्राउनिंग मोशन नहीं होना चाहिए जब इफ देयर इज ए ब्राउनिंग मोशन, चाहे वो गैस हो लिक्विड हो, फिर कर पाएंगे। तो विस्कस लिक्विड्स जिनमें कोई ब्राउनिंग मोशन नहीं है और उनमें कुछ पार्ट क्रिस्टलाइन, वो क्रिस्टलाइन पार्ट आपको दिखेगा, बाकी सब अमॉर्फस हम दिखेगा। तो हाईली विस्कस लिक्विड्स को आप टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वे लिक्विड्स बाय द वेरी नेचर दैट दे आर लिक्विड, दे आर मोस्टली अमॉर्फस। तो ये लिमिटेशन है। गैसेस को तो आप बिल्कुल भी स्कैन नहीं कर सकते, बिकॉज गैसेस आर नॉट सपोज टू मेक एनी क्रिस्टल्स, बट लिक्विड्स में क्रिस्टल्स बनते हैं और वो क्रिस्टल्स जब आप स्कैन कर रहे हैं तब होने चाहिए, जब आपने प्रोड्यूस किए तब हैं। लेकिन जब तक आप उसे लेकर आए, मान लीजिए आपने अपनी लैब में प्रोड्यूस किया और यहाँ पर लेकर आए, बीच में पूरी गर्म धूप थी और टेम्परेचर में वो डिस्ट्रॉय हो गई, यहाँ पर आपको नहीं दिखे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए समझने के लिए कि आपका सैंपल XRT में ऐसा दिख रहा है जैसा वो इस टाइम, जैसा वो प्रोड्यूस हुआ था वैसा नहीं। अगर वो टाइम के साथ, टेम्परेचर के साथ, ह्यूमिडिटी के साथ चेंज होता है, तब वो चेंज क्रिस्टल स्ट्रक्चर दिखेगा। बहुत सारे सैंपल हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, बारिश के टाइम में वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच करके वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज करते हैं। सिंपलेस्ट एग्जांपल इज जिप्सम। जिप्सम हैज डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर इफ इट इज एनहाइड्रस, मोनोहाइड्रस और two water molecules or 4 water molecules. They are entirely different crystal structures. So they will come as the sample is inside the machine. अगर आपको चेंज क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिल रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से, तो आपको उसको ट्राई करना पड़ेगा हीट करके। अगर हीट करते समय सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल निकलना चाहिए, फेस ट्रांजिशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये सब थियोरेटिकली हमें पता है, बट मशीन में प्रैक्टिकली काम करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी हमें जानने पड़ेंगे। कि सबसे पहला प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ये कि हम सैंपल कैसे बनाएंगे ताकि हमारा डेटा अच्छा। दूसरा, हम प्रोग्राम कैसे बनाए ताकि डेटा अच्छा। और तीसरा, एक बार हमारा सैंपल भी अच्छा है और प्रोग्राम भी अच्छा है, डेटा उसको अच्छा आएगा, फिर उसको कैसे ट्रीट करें ताकि हमारे रिजल्ट अच्छे हैं, ठीक है। तो इसी 3 फेजेस में हम काम करेंगे। सबसे पहले मैं आपको सैंपल बनाना सिखाऊंगा, उसके बाद प्रोग्राम बनाना और उसके बाद फिर एनालिसिस। एनालिसिस हम कल करेंगे, आज का काम हमारा सैंपल बनाना प्रोग्राम। तो आपके पास 3 टाइप के सैंपल होल्डर्स हैं। एक सैंपल होल्डर से एक कैविटी है, दैट्स इट, यू फिल एंड देन यू प्रेस विद अ ग्लास स्लाइड एंड देन यू यूज इट एज अ सैंपल, ठीक है। दिस इज योर सैंपल साइज। As per sample size, we will calculate what should be the beam size. Beam size should be made in such a way that it covers all the sample, but should not go outside. But this is steel. So if X-rays fall on steel, then steel will show its own crystalline nature. So we should not get any signature from this. Now this is for low amount of samples. When you have less amount of sample, then you use this. When you have more sample, then you have this sample holder which clicks like this, and here you have a bigger camera. So larger the sample size, larger can be the beam, better will be your signature. So if you can make samples in this much quantity is best, because then you can make quicker scans and you will have better data. But if you cannot manufacture, then you have to use this. If you cannot even fill this, if you can manufacture which is so less that you cannot fill this, then you have to use zero background. So you have all the options. Prefer to use this always. So this will enable faster scan and best data. This will be slower and you have to invest a lot of time, that's why it will be slower scans. So slow means step size में slow नहीं, time ज़्यादा देना पड़ेगा, हर step पर time ज़्यादा देना पड़ेगा। This is same zero background holder, ठीक है। और उसको इस सैम्पल होल्डर में कैसे डालते हैं मैं दिखा दूँ, बट अदरवाइज मैंने सिंपल यही काम किया कि पाउडर लिया, उसको प्रेस कर दिया और जीरो बैकग्राउंड होल्डर को इस स्टील होल्डर में लगा कर मार दिया और अब डिफाइन कर दिया मेरा स्टार्ट एंगल क्या होगा, स्टॉप एंगल क्या होगा, स्टेप साइज क्या होगा। कैसे किया है इसको ताकि मेरा अच्छा डेटा है। उससे पहले जानिए अच्छा डेटा क्या होगा, तभी तो आप उसको टारगेट करोगे ना कि मेरे को ऐसा डेटा चाहिए। तो गुड डेटा हैज सम कैरेक्टरिस्टिक्स। दिस वाज द इनिशियल स्कैन आई डिड, जस्ट टेस्ट स्कैन, कि ये सैंपल भी मेरे लिए अननोन है। मुझे वैसे पता है कि टाइटेनियम है, बट हो सकता है कुछ और इसमें कुछ पिक्चर्स। तो मैंने एक लो एंगल से एक हाई एंगल पे उसको स्कैन, ये एक टेस्ट स्कैन। तो यूजुअली यहाँ पर आप एक प्रोग्राम बना सकते हो जो 1 या 2 मिनट हो, जिसमें हर अननोन सैंपल को चला के ऐसे देख सकते हैं। जब नॉन सैंपल है तब तो आपको पता है कि मेरा स्टार्ट एंगल क्या होना चाहिए, स्टॉप एंगल। जब अननोन सैंपल है तो आपको पता है। अब ये अननोन जैसे सैंपल है, तो अब मैंने देखा है कि ये दिस इज द फर्स्ट पिक। सो दिस पिक इज, राइट क्लिक करेंगे पिक पैरामीटर्स में, यहाँ आपको 13.2, राइट। So if first peak is at 13.2 and it has a tail which ends at 13,
अभी पर टेल का कुछ हिस्सा अभी बाकी है, so tail ends at say 12.8. So you can safely start from say 12.5 or 12.6 if you have to save a lot of time, then you optimize this. But I said okay, I will start from 10 degrees. तो कोई भी पीक हाफ स्कैन नहीं होनी चाहिए, फुल स्कैन होनी चाहिए पीक। लेकिन फर्स्ट अननेसेसरली इस सैंपल को 1 डिग्री से करने का कुछ नहीं। 1 डिग्री से 10, 11, 12 डिग्रीज तक कोई सिग्नल नहीं है, यू आर जस्ट वेस्टिंग टाइम, राइट। सो दिस इज हाउ यू शुड फाइंड योर फर्स्ट एंगल क्या होना चाहिए, स्टार्ट एंगल। स्टॉप एंगल के लिए लॉजिक क्या है, जैसे आप एंगल्स बढ़ाते जाते हैं उसकी वैल्यू इंटेंसिटी घटती जाती है। क्यों होता है ऐसा? पोलराइजेशन इफेक्ट, वी कॉल्ड इट पोलराइजेशन इफेक्ट। इशू तो नहीं है, और आपने पढ़ा है कॉम्पलेक्स स्कैटरिंग में एंगल डिपेंडेंस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ स्कैटरिंग, इंटेंसिटी इज cos स्क्वायर थीटा। बैक स्कैटरिंग में सबसे ज़्यादा लो एफिशिएंसी होती है क्योंकि वहाँ पर एंगल बहुत हाई हो जाता है जी, और क्योंकि ये स्कैटरिंग इलेक्ट्रॉन से होती है इसीलिए ऐसा होता है। न्यूट्रॉन स्कैटरिंग में ऐसा नहीं होता क्योंकि न्यूट्रॉन स्कैटरिंग में न्यूट्रॉन से स्कैटरिंग होती है, ठीक है, एंड दैट चार्ज इज फिक्स्ड राइट इन स्पेस। सो एक तो हायर एंगल्स पर पीक की इंटेंसिटी कम होती है, ठीक है। दूसरा ये बात है कि हायर एंगल पीक्स आपको कब चाहिए? हायर एंगल पीक्स आपको सिर्फ तभी चाहिए जब आपका मटेरियल ब्रांड न्यू है, उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर ढूंढना है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर ढूंढते कैसे हैं कि आप एक्सरे डिफ्रैक्शन करते हैं और आपके पास लाइब्रेरी में कोई स्ट्रक्चर नहीं है, अब आप गेस वर्क करते हैं। पहले उनकी इंडेक्सिंग करते हैं, तो इंडेक्सिंग करने की प्रोसेस आपने फिजिक्स की क्लासेस में पढ़ी। कितने लोग फिजिक्स के स्टूडेंट हैं? बाकी केमिस्ट्री फिजिक्स में ज़्यादातर हम लोग कंडेंस मैटर फिजिक्स में पढ़ते हैं, बट आई थिंक केमिस्ट्री में अगर इंडेक्सिंग अगर पढ़ाया है आपको तो आप क्यूबिक स्ट्रक्चर मानकर डी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके और गेस कर सकते हैं कि हाँ ये मेरी पीक सेम पोजीशन पर आ गई तो इसका इंडेक्स ये होगा। सबसे पहले आप इंडेक्सिंग करते हैं, फिर स्पेस ग्रुप निकालते हैं, ठीक है, ओके, एस वर्क से आगे, और फिर आप एटॉमिक कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। उस तरह से आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिल जाए। क्रिस्टल स्ट्रक्चर उतना ही एक्यूरेट निकाल पाएंगे जितने ज़्यादा लैटिस प्लेन्स को आप देखेंगे, क्योंकि अभी क्रिस्टल को लैटिस प्लेन्स एचकेएल बेसिकली क्या बता रहे हैं कि कितनी डायरेक्शन से देखें। आप जो रिसर्च कर रहे हैं वो मटेरियल्स ऑलरेडी सबको पता है और उनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स भी पता है, ठीक है। तो उस केस में आपको सिर्फ मटेरियल आइडेंटिफाई करना है, पीक मैच करके। तो बहुत सारे मटेरियल्स की एक पीक सेम पोजीशन पर हो सकती है, 2 पीक्स का सेम पोजीशन पर होना थोड़ा रेयर हो जाएगा, 3 पीक्स का और भी ज़्यादा रेयर, 4 पीक्स का मैच होना बहुत ही रेयर। So all you need is just like 3 or more than 3 peaks. You don't need 15 peaks, 20 peaks always. So this is the guidance which tells you what should be your end angle. Your end angle should be such that you have good intensity peaks and you have sufficient number of peaks. If my aim is only to identify titanium, I need only scan up to this angle, from this angle to this angle. I don't need something. 3 peak है, 3 peak मिल गई अगर ये तीनों टाइटेनियम के पीक है। अगर अब different material titanium has 2 phases, anatase and rutile. They have peaks at different positions, so you have to guess this thing for both anatase and rutile. anatase और rutile की 3 peaks किस रेंज में आ जाती है। और कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगे अगर आपके मिक्सचर में कंपोनेंट्स और ज़्यादा हो। अगर मिक्सचर में 10 कंपोनेंट्स हैं तो 10 को स्कैन करना पड़ेगा, डेटाबेस से निकालना पड़ेगा कि इन सारे मिनरल्स की 3 या 4 पीक्स किस रेंज में आ जाएंगी, वो रेंज में आपको एक्सपेरिमेंट। सो देयर इज नो यूनिवर्सल रेंज which will always work for all materials. Different materials have different requirements. तो उसके लिए एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि ज़्यादातर लोग बोलते हैं scan my sample from 2 degree to 100 degree. They always write just 90. But there are some issues in scanning from very low angles. तो उससे पहले मेरे को ये कैलकुलेट करके बताओ, सब लोग पेन पेपर पे, इसके पास नहीं है वो लेकर आ जाओ, because you have to do some calculation. ये कैलकुलेट करके बताओ कि what is D value if your peak is at 1 degree. 1 डिग्री पर अगर पीक है तो डी वैल्यू कितनी हुई? इफ योर लैम्डा इज 1.54 एंगस्ट्रॉम, आपने देखा 1 डिग्री यानी लो एंगल पर पीक उन चीज़ों की आएगी जहाँ डी वैल्यू बहुत ज़्यादा 88 है। नाउ यू कैन इमेजिन which kind of materials will make a unit cell which is 88 angstroms. Sodium chloride cannot make it. Sodium and chlorine का content इतना है ही, just few angstroms. एटॉमिक साइज बड़ा होना चाहिए, या तो एटॉमिक साइज बहुत बड़ा हो या फिर यूनिट सेल बड़ा की चीज़ों का हो सकता है। ऑर्गेनिक मटेरियल्स में प्रोटीन्स है, कुछ प्रोटीन्स है
they are large in size and they repeat. The polymers, when monomers are at 88 angstrom, polymer will be having a unit cell of 88 angstrom. Monomer का size है 88. Yeah, zeolites, they are also very large in size. And large crystals are very fragile because they will collapse and become amorphous very easily. Right? So if somebody comes and says कि मेरा scan आप ऐसे करो कि I have a peak at 1 degree, that means his sample is very fragile. It is very sensitive to temperature, even light. So he might have made very nicely there in the lab, but by the time you come here, you might not see that peak. So you have to consider these things, and you have to see that one day अगर लो एंगल पर पीक आनी चाहिए और नहीं आ रही है, तो उसका रीजन क्या है? तो ये सैंपल की नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसकी पीक कहाँ है. इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट रिमूव अ पीक, कैन नॉट क्रिएट अ पीक. सैंपल्स मेक्स पीक्स एंड सैंपल्स प्रिपरेशन रिमूव्स द पीक्स. ऐसे ही अगर आप कैलकुलेट करके बताओ कि 100 डिग्री अगर पीक होगी तो डी वैल्यू 1 डिग्री पर 88 था तो 100 डिग्री चाहिए. तो इससे भी आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको अगर मटेरियल पता है तो उसकी पीक्स कहाँ होनी चाहिए. somebody gives you zinc oxide, you know zinc oxide का crystal lattice किस साइज का है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि मेरे फर्स्ट पीक कहाँ होगी, थर्ड सेकंड पीक कहाँ होगी, थर्ड पीक कहाँ होगी. ठीक है, तो आपको स्टार्ट एंड स्टॉप एंगल्स का गेस, तो ना तो आपको बहुत अच्छी पीक लो एंगल पर मिलेंगी ज़्यादातर मटेरियल की, ना बहुत हाई एंगल, मिड रेंज में ज़्यादातर पीक्स मिलेंगी. तो आपको यही देखना है कि आपके मटेरियल की फर्स्ट पीक जहाँ है उससे थोड़ा पहले आपको स्टार्ट करना है. तो 3 या 4 पीक डिपेंड करता है कि आपको सारे के सारे मिनरल्स डिटेक्ट करने हैं. वो सारे के सारे मिनरल्स की 3 या 4 पीक किस रेंज में मिल जाए, सिर्फ वहीं का स्कैन, हमेशा बहुत हाई एंगल पर स्कैन नहीं करना. ठीक है, ये बात हो गई कि एक प्रोग्राम के लिए मेरा स्टार्ट एंड स्टॉप कितना होगा. तो 4 पैरामीटर्स हैं प्रोग्राम बनाने के लिए. स्टार्ट एंगल डिफाइन करना, स्टॉप एंगल डिफाइन करना, फिर इन स्टार्ट और स्टॉप के बीच में वी टेक स्टेप्स. तो स्टेप साइज, तो स्टेप साइज किस बात पे डिपेंड करेगा. पहला फैक्टर है कि 2 पिक्स कितनी क्लोज है और हमें उसको रिजॉल्व करना. अगर 2 पिक्स 1 डिग्री के से सेपरेटेड है तो स्टेप साइज कम से कम 10 गुना कम होना चाहिए. तो स्टेप साइज 0.1 होना चाहिए ताकि मैं उनको रिजॉल्व कर पाऊँ. अगर वो 1 डिग्री हुआ तो मैं रिजॉल्व नहीं कर पाऊँ. 0.5 हुआ तो पुअरली रिजॉल्व हुआ. 0.1 से छोटा कितना भी नंबर हुआ तो आई कैन रिजॉल्व दिस टू. तो पहला फैक्ट है कि कितना 2 पास में जो पिक्स हैं उनको मैं रिजॉल्व कर सकता हूँ. और दूसरा फैक्टर ये है कि अल्टीमेटली XRD एनालिसिस में वी विल फिट द पीक विद अ मैथमेटिकल फंक्शन. एंड फॉर फिटिंग वी मस्ट हैव सफिशिएंट नंबर ऑफ डेटा. अगर एक पीक 3 डेटा पॉइंट से बनी हुई है, एक उसका बेस, एक टॉप, उसका शेप ट्राइंगल, बट XRD पीक्स आर नॉट ट्राइंगल्स, दे हैव अ शेप. सो शेप और मैथमेटिकल फंक्शंस के बीच में बहुत सालों तक रिसर्च चलती रहती है. सबसे पहले हम लोगों ने सोचा कि XRD पीक्स आर गॉसियन, तो मोस्ट फिजिकल फिनोमेना आर गॉसियन, but they are not Gaussian. Gaussian function is too fat. So if it is too fat, then people said, okay, let's try Lorentzian. But Lorentzian is too thin. Gaussian is too fat, Lorentzian is too thin. So then White, the French mathematician, he said, let's mix both of them and control the mixture to make a function which can fit a peak. So XRD peaks are very fat at base, very sharp at top. So we use White function in which we control how much of Gaussian, how much of Lorentzian to make a shape which fits. ये फिटिंग करने के लिए हमें sufficient number of data points. Now, how much number is sufficient? Now, there is no golden rule. This is just an empirical conclusion that the top of the peak should be made by 10 points. How do you define top of the peak? Mathematically तो अच्छे से चीज़ों को डिफाइन करना पड़ेगा. तो पीक की विड्थ भी जैसे विड्थ कहाँ पर आप नापोगे, क्योंकि ऊपर अलग विड्थ है, नीचे अलग विड्थ है, बेस अलग विड्थ है. ठीक है, तो सबसे पहले विड्थ के कन्वेंशन है कि यू टेक द विड्थ with full width at half maximum. Go to the half of the height of the peak and you measure width. If everybody does that, they will get same number. ठीक है, नहीं तो एक ने अगर टॉप में नापा कहीं पे 25% पे, दूसरे 75% पे, तो डिफरेंट नंबर्स आएंगे. So everybody agreed, let's do this thing. We will always measure full width at half maximum. उसको short form में FWHM. So the convention for number of points is above FWHM, you should have 10 number of points. Now this becomes very nice guiding principle to define what should be my steps. I will take a fast scan and go to the sharpest peak and measure its FWHM and divide that number by 10. Use that as my success. इससे वो शार्प पिक तो 10 पॉइंट से बनेगी उसका टॉप, और बाकी 10 से थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि अच्छा है 10 से कम नहीं होना चाहिए.
that is what I was doing when you came here. I took a scan and I found the sharpest peak and found a self-reflection, divide that number by 10, use that as my step size in the report. इसीलिए डेटा क्लीन है, peak shapes clean है. So there are many step sizes. You have to choose the right step size. Different materials will require different step sizes because उनकी peak width is different. Peak width depends on crystal size and strain. Same material, different crystal sizes के different width की peak है. तो उनके step size same नहीं हो सकते. Step size जितने छोटे होते जाएंगे उतना स्कैन लंबा होता जाएगा. उतने ज़्यादा steps लेने पड़ेंगे ना, छोटे छोटे steps, टाइम ज़्यादा लगेगा. But you have to spend this much time at least because you have to get the right shape. नहीं तो फिट नहीं कर पाएंगे. और फिट नहीं कर पाएंगे तो सॉफ्टवेयर में you get answers from fitted data. You don't get answers from your data. आपकी मेजरमेंट से आंसर्स नहीं मिलते. आप उस मेजरमेंट में जो फिटिंग करते हो तो फिटिंग से आपको राइट डेटा मिलता है. तो अगर फिटिंग खराब है तो आपके कंक्लूजन फिटिंग ताकि अच्छी हो इसीलिए शेप अच्छी हो. ओके, तो स्टार्ट एंगल डिफाइन किया फर्स्ट पीक से. स्टॉप एंगल 3 या 4 पीक्स हर फेस किए जाते हैं, वो स्टॉप एंगल डिफाइन करेगा. और स्टेप साइज इस बात पर डिपेंड करेगा कि पीक कितनी शार्प है. तो आप एक फास्ट स्कैन दो, शार्पेस्ट पीक का एफडब्ल्यूएचएन निकालो. तो यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर है आपके पास. आप जब भी डबल क्लिक करेंगे किसी भी डेटा फाइल को जो इस मशीन से निकले, इट विल ओपन इन सॉफ्टवेयर फॉर डेटा व्यूअर. ठीक है, डेटा व्यूअर में यू कैन ओपन एंड देन यू कैन गो टू एनी पीक जिसका आपको फॉर्मेट ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है. जूम करो उसको, डेटा पॉइंट पे जाके राइट क्लिक करो, पीक पैरामीटर. So it will tell you position, height and everything. So अगर इस पीक का अच्छा शेप आना चाहिए तो मेरी स्टेप साइज एटलीस्ट 0.0166 होनी चाहिए या उससे थोड़ी सी कम. So I took 0.01. So that is why the shape is very nice. So just zoom करके right click करके peak parameters. Otherwise you can go to your origin, इसको plot करो, उसको fit करके curve fit करके भी आप ये निकाल सकते हो. वही यहाँ पर होगा बेसिकली, but it's a shorthand. अब लास्ट पैरामीटर रहेंगे which is time per step. So your start angle, stop angle, step size and now time per step. What is time per step? So instrumentation wise, when we have a detector which is moving, first thing is detector has a dead time. आप लोगों ने इंस्ट्रूमेंटेशन का कोई कोर्स किया है कभी? तो आपको थोड़ा सा मुझे ब्रीफ करना पड़ेगा कि कभी भी कोई भी सेंसर होता है, like our eyes also, we sense and then we interpret the data. The time of interpretation is our dead time. We cannot sense in that dead time. So every detector has a dead time. Beyond that, in that time you cannot sense. X-rays आते रहेंगे continuously. No, there is no stoppage of X-rays photons, but detector will detect and then it will be dead for some time. Then it will rise up again. Fortunately, dead times now in modern detectors are very very less. They are in nanoseconds and picoseconds. So you don't feel that. In old time, detectors had considerable dead time, so we had to think about dead time also जब आप स्कैन कर रहे हो. क्योंकि आप एक स्टेप लिया आपने 1 सेकंड का और हाफ सेकंड का डेड टाइम ही था, तो एक्चुअली इट इज नॉट अ स्टेप ऑफ 1 सेकंड, इट इज एक्चुअली अ स्टेप ऑफ हाफ सेकंड. सो इफ यू यूज 1 सेकंड कैलकुलेशन इट विल बी ऑल रॉन्ग, यू विल गेट हाफ इंटेंसिटीज क्योंकि डिटेक्टर आधे टाइम ही था. लेकिन अब 1 सेकंड का स्टेप है और डेड टाइम 1 पिको सेकंड है, तो यू डोंट केयर. Then it is virtually 1 second. It's 1 second minus 1 picosecond, which is almost 1 second. So you don't care. So dead time now you don't consider, but suppose you go to some other instrument or some other facility which has these things which you have to consider, then you have to think about it. न्यूक्लियर डिटेक्टर होता था, सेंटिलेशन डिटेक्टर, PMT. Yeah. So पहले एक्सरेज के लिए भी सिंटिलेशन डिटेक्टर्स या बिगर मुलर काउंटर्स को ही यूज करते हैं, इसीलिए वहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट डिटेक्टर्स यूज्ड इन XRD were बिगर मुलर काउंटर्स. Then people started using scintillation detectors. Now you have a solid state detector. I'll come to the detector. So डेड टाइम तो आपको ध्यान नहीं देना, बट आपको ये ध्यान देना है कि एक डिटेक्टर को एक एंगल पर कितने टाइम रोकना है ताकि वो डेटा कलेक्ट करे. उतने टाइम तक वो सिर्फ उस एंगल पर रुकेगा, उसको नोट करेगा. सो द इलेक्ट्रॉनिक्स नोज द एंगल एंड इट रिकॉर्ड्स द काउंट्स एट दैट एंगल. सो व्हाट डिटेक्टर इज डिटेक्टिंग इज काउंट, नॉट नंबर ऑफ फोटॉन्स. राइट. सो काउंट क्या चीज़ है? काउंट हैज नो यूनिट. व्हाट इज दिस काउंट? काउंट इज एक्चुअली अ वोल्टेज. उसके लिए जानना होगा डिटेक्टर कैसे काम करता है. सो डिटेक्टर हियर इज अ सिंपल सिलिकॉन डायोड इन रिवर्स बायस. सो अगर फोटोन आएगा तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनाता है, और ये इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी रजिस्टर के थ्रू पास होंगे तो वोल्टेज होगा. ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा फोटोन्स, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा वोल्टेज, कम फोटोन्स कम इलेक्ट्रॉन्स कम वोल्टेज. और
और अलग अलग डायोड मटेरियल्स की एफिशिएंसी टेम्परेचर के साथ चेंज होती है. So they are more efficient at low temperatures, very high efficient at high temperature. But good thing about this detector is it works very nicely with very good efficiency at room temperature. You will see some other detectors which are better than this, but you require cooling. That cooling circuit आप पेल्टियर से कूलिंग कर सकते हो या फिर लिक्विड नाइट्रोजन उतना ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है. So the detector must not be very complex because it has to move and it has to work for 15-20 years. So we have to make a simplest detector. That's why we chose this kind of detector. दूसरा, semiconductor industry can make things very small. So we made detector very small, 55 microns. And because we have 55 micron detector, we made 256 in a line. तो एक डिटेक्टर में आके एक सिंगल डिटेक्टर जैसे सिंगल रीड आउट चैनल है जो इंडिविजुअली डिटेक्ट कर सकता है वो 55 माइक्रोन्स का है. बट 256 चैनल्स है जो साइमल्टेनियसली डेटा रीड कर सकते हैं. एडवांटेज क्या हुआ, यू कैन मेजर 256 एंगल साइमल्टेनियसली. सो यू कैन बी वेरी फास्ट. मान लीजिए आपका स्टेप साइज ऐसा था कि आपके 10,000 एंगल्स आपको नापने हैं, 10,000 स्टेप्स है. तो एक एक स्टेप एक एक बार में नापते हैं, एक एक सेकंड के लिए तो 10,000 सेकंड लगते हैं. Right, so 10,000 seconds is 3,600. Say I divide to almost 2.5 hours. This was what was being done in old times. We had a point detector which was measuring 1 point at a time. That way scans were very large. But now you have 256. So 10,000 steps measured parallelly, लेकिन 256 steps simultaneously measured. So you will be very fast. Theoretically you will be 256 times faster. So many hours will become a few minutes or sometimes seconds. That is why nowadays you can do very fast. एक एडवांटेज तो ये होती है you can be very fast because the measuring simultaneously all है. दूसरा एडवांटेज, you will get better intensities because what happens? This angle is first measured by first channel, then measured by next channel, then measured by next channel, then measured by next channel. जब लास्ट चैनल इस एंगल को नाप लेगा तो वो सारे चैनल्स की इंटेंसिटीज को ऐड कर देगा इस एंगल. So these detectors are what we call position sensitive detectors. They know the coordinate, so they know the angle. So with this information, they can add intensity. Adding intensity gives you better signal. So you have double advantage. आप fast भी है और ज़्यादा intensity भी है. पहले आप slow भी थे और कम intensity थे. कम intensity होने की वजह से और slow होना पड़ता है. So now you have double advantage. This is the reason now it's possible to get less than 1 minute scans which are good enough for retweet. Right, with this kind of improvement. So that is why the tube and detector are same, which we use in both systems. They are not different. That's why data quality is same. यही data इसी sample पर ऐसे ही देखेगा exposed sample, powder diffraction के. The only limitation is this machine can do only powder diffraction, but data quality wise is same. That's because of optimizing this detector. बाकी इसका robotization and goniometer को छोटा करना ये challenging है. This part is called goniometer. This moves the arms. And this has to repeatedly do over years. And this, any mistake in doing this will be mistaking your data. So you cannot afford mistakes. So making good goniometers which work for a very long time is very challenging. You should not have any backlash and any other things. And we cannot have this goniometer here. This cannot be miniaturized. So we had to invent a new kind of goniometer using pulleys, which can be miniaturized. And that's what we miniaturized. क्योंकि हमारे ट्यूब और डिटेक्टर वही था तो उनका वेट ज़्यादा था तो we cannot use these motors. These motors cannot support this power. आर्म छोटा है, वेट ज़्यादा है, पावर ज़्यादा हो गया है, तो अब आपको सेम मोटर नहीं यूज़ कर सकते. अब वो मोटर छोटे भी नहीं हो सकते. So this is the reason that this machine is giving good quality data because of these improvements. Other benchtopes, if you go to them, they will not give this quality data. That's the reason.
सर ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है कि कहाँ पे रखा हुआ है। ये सेंसर है, ये सेंसर है, ये एक्सरे ट्यूब है, ये डिटेक्टर है और ये गोनियोमीटर पुली सिस्टम है। सर जो दिख रहा है सर ये एक्सरे ट्यूब है, ये डिटेक्टर है और ये जो सैंपल आप रखते हैं तो ये आर्म लाके यहाँ रख देता है, यहाँ पर सैंपल लोड कर देगा और फिर ये ऊपर उठ के इसमें फिट हो जाएगा, फिर स्कैनिंग होगी। That's it. कितने एंगल से कितने एंगल तक? 10 से 7। 10 से 6। तो मैंने एक प्रोग्राम बना दिया है 10 to 70, उसी में चला देते हैं। हाँ सर। तो चलाने के लिए मेजरमेंट और जो भी लास्ट स्कैन था वो रहेगा इस पोजीशन पे। पोजीशन कोई भी हो सकती है, आप इस पे रखेंगे अगर मान लीजिए तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, तब यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हैं। कहीं पर भी आप साइमल्टेनियसली रखकर और डिफाइन कर सकते हैं। जिस सीक्वेंस में आप डिफाइन कर रहे हैं उस सीक्वेंस में सैंपल होते रहेंगे, लेकिन जिस सैंपल को जहाँ से उठाएगा वहीं पर रखेगा। तो अगर यहाँ का सैंपल अभी चल रहा है तो आप यहाँ पे मत रखोगे, नहीं तो उसको गिरा देगा रोबोटिक आर्म, ठीक है। वो सेंस कर नहीं सकता है कि यहाँ पर एक सैंपल है, सिर्फ स्टार्टिंग में सेंस कर सकता है। ये सेंसर है, ये सेंस करके ये बताता है कि यहाँ सैंपल है कि नहीं। तो अभी जैसे मैं यहीं पे रखता हूँ और उसके बाद डिफाइन करता हूँ। ये बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, कुछ इनबिल्ट प्रोग्राम्स हैं और कुछ आप बना सकते हो। ये मैंने बनाया, ये सारे इनबिल्ट थे, ठीक है। तो आप ये वाला जो प्रोग्राम आपको यूज़ करना है वो चलाइए, सैंपल आईडी में उसका आईडी लिख दीजिए। ओ सॉरी, हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, इस पोजीशन पे डिफाइन, यहाँ पे डिफाइन दैट्स इट। रोबोटिक काम उठाएगा वहाँ से सैंपल को, स्टार्ट स्कैनिंग एज पर द प्रोग्राम। ये आधे घंटे का प्रोग्राम है, बट डिपेंड करता है अगर आप ऑप्टिमाइज़ करो और आपका सैंपल ज़्यादा क्रिस्टलाइन है, उसको आधे घंटे की ज़रूरत नहीं है तो आप कम में भी कर सकते हैं। आप तो स्कैन टाइम कैसा करना है वो डिपेंड करता है कि आपका टारगेट एक्सपेरिमेंट क्या है, सिर्फ आइडेंटिफाई करना है या क्वान्टिफाई भी करना है। तो अगर मटेरियल हाईली क्रिस्टलाइन है, बीम बहुत शार्प है, तो वो क्विक स्कैन कर सकते हो, उसमें भी सिग्नल रेशियो अच्छे आएंगे। लेकिन जब मटेरियल नैनो क्रिस्टलाइन हो जाता है तो बीम ब्रॉड हो जाती है, उसकी वजह से वो कम इंटेंस हो जाती है। फिर एरिया सेम रहेगा, तो अगर बीम शार्प होगी तो इंटेंसिटी ज़्यादा होगी और अगर ब्रॉड होगी तो उसका इंटेंसिटी कम हो जाएगी। उतना जितना इंटेंसिटी कम होगी उतना आपको इंटेंसिटी सिग्नल रेशियो इंप्रूव करने में उतना ही टाइम ज़्यादा लगा। लेकिन स्टेप साइज बड़ा ले सकते हैं, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। शार्प पीक में स्टेप साइज छोटा होगा लेकिन इंटेंसिटी अच्छी होगी तो फास्ट हो सकता है, और नैनो क्रिस्टलाइन में स्टेप साइज बड़ा हो सकता है लेकिन टाइम का स्टेप ज़्यादा देना पड़ेगा। तो यूजुअली 5-10 मिनट्स में सैंपल हो जाता है। तो ये प्रोग्राम है XRD MP क्रिएटर, जिसमें आप प्रोग्राम्स बनाते हैं। तो इसमें आप डिफाइन करते हो सबसे पहले किस टाइप का स्कैन है। तो आपके लिए हमेशा गोनियो स्कैन होते हैं, 2 थीटा स्कैन थिन फिल्म्स के लिए होते हैं, वो फैसिलिटी मशीन में नहीं। मैं बताऊँगा गोनियो स्कैन और 2 थीटा स्कैन में अंतर बताऊँगा। आपके लिए हमेशा गोनियो स्कैन ही रहेगा। दूसरा स्टार्ट एंगल, स्टॉप एंगल, ये स्टेप साइज है, ये कैसे ऑप्टिमाइज करना मैंने बताया था आपको। शार्प स्पीड का 4 बिट तक मैक्सिमम, बहुत छोटे स्टेप साइजेस भी हैं, बहुत बड़े स्टेप साइजेस भी, डिपेंड करता है कि आपकी पीक कितनी होगी। और फिर टाइम पर स्टेप है, ठीक है। तो ऐसे ऑप्टिमाइज करके आप एक प्रोग्राम बना सकते हो, ये आपको टोटल टाइम यहाँ दिखेगा, ठीक है। कुछ पेपर्स में जहाँ से आप गाइडेंस ले रहे हो कि क्या होना चाहिए, स्कैन स्पीड लिखी रहती है। तो स्कैन स्पीड इन्हीं पैरामीटर से कैलकुलेट होती है। तो स्कैन स्पीड आप यहाँ से देख सकते हो कि मेरी स्कैन स्पीड मैच हो रही है उससे। दूसरा ये स्कैन पैरामीटर्स डिफाइन करने होते हैं, ऐसे ही हार्डवेयर में क्या डालना है वो भी डिफाइन करना है। तो सबसे, और यहाँ पर अच्छा है कि आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो दिखाएगा कि कहाँ की बात हो रही है। तो सबसे पहले एक निकल फिल्टर है के बीटा रेडिएशंस को निकालने के लिए, फिर एक सोलर स्लिट है, यहाँ पे 0.04 रेडियन की ही सोलर स्लिट है, दूसरी नहीं है। फिर डाइवर्जेंस स्लिट है, मास्क है, बीम नाइफ नहीं है, और मैं स्पिन भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जीरो बैकग्राउंड होल्डर पे सैंपल को स्पिन किया तो सारा पाउडर उड़ जाएगा, ठीक है। जब ये सैंपल होल्डर्स हैं तब आप स्पिन कर सकते हैं। उसमें स्पिन करने में फ़ायदा है क्योंकि बीम का साइज रेक्टेंगल है और सैंपल सर्कुलर है। जब तक स्पिन नहीं करोगे सारा सैंपल कवर नहीं होगा। एंटी स्कैटर स्लिट फिक्स्ड है, इसमें चेंज नहीं की जा सकती, आपकी मशीन में चेंज हो सकती है, यहाँ नहीं। और यहाँ पर भी सोलर स्लिट है, और बीटा फिल्टर एक ही साइड लगाते हैं, या इंसिडेंट साइड या डिफ्रैक्शन साइड, दैट्स इट। आपका जो डिटेक्टर है उसमें 250
ये 255 इसलिए लिखे हैं कि कंप्यूटेशन में जीरो से काउंटिंग स्टार्ट, रियली 256 चैनल है, ठीक है, दैट्स इट। तो आप पैरामीटर्स डिफाइन करते हो और हार्डवेयर डिफाइन करते हो। जब प्रोग्राम चलता है तो वो लास्ट जो प्रोग्राम चला था उसका हार्डवेयर से कंपैरिजन करता है। अगर हार्डवेयर सेम है तो वो सीधा चलता है, अगर सेम नहीं है तो वो बोलता है कि प्लीज़ मेक द चेंज। तो आप डोर खोल के वो चेंजेस करते हो स्क्रिप्ट्स के, फिर बंद करते हो, फिर कंटिन्यू करते हो। नेक्स्ट प्रोग्राम इस प्रोग्राम से कंपेयर करेगा तो हर प्रोग्राम पिछले प्रोग्राम जो भी लास्ट चला था सिस्टम उसको रिमेंबर करता है कि अभी हार्डवेयर ये लगा हुआ। अगर आपने हार्डवेयर चेंज नहीं किया और ऐसे ही कंटिन्यू कर दिया तो सिस्टम अज्यूम कर लेगा कि आपने चेंज कर दिया, कोई क्रॉस चेक नहीं है। रिकॉर्ड ये होगा जो यहाँ पे आपकी डेटा फाइल जो अल्टीमेटली बनती है, इस डेटा फाइल के अंदर डेटा भी होता है और इंस्ट्रूमेंट का मेटा डेटा भी होता है। ये डेटा फाइल है, यहाँ से ग्राफ दिख रहा है आपको, यहाँ से रिपोर्ट दिख रहा है। तो ये कब स्कैन किया था, कितने टाइम का था और कौन सी ट्यूब लगी हुई थी, उसकी क्या वेवलेंथ है, इंसिडेंट बीम पाथ में क्या लगा हुआ था, फिल्टर लगा हुआ था, सॉलिड फिल्टर जो हमने यहाँ डिफाइन किया वो यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है। कौन सा मास था, ठीक है, कौन सी डाइवर्जेंस रेट थी, बीम नाइफ लगा हुआ था कि नहीं, सैंपल स्पिन कर रहा था कि नहीं, ठीक है। उसके बाद कौन सा डिटेक्टर था और उसने किस मोड में स्कैन किया, और स्टार्ट एंगल, स्टॉप एंगल, स्टेप साइज और टाइम कॉस्ट क्या, ये सब रिकॉर्ड है। तो अगर आप रियल में चेंज नहीं करते, यहाँ पर प्रोग्राम में कुछ और है, इंस्ट्रूमेंट में कुछ और है, तो ये इसी को रिकॉर्ड करेंगे। उस केस में क्या होगा कि आप जब पेपर पब्लिश करोगे तो वो आपसे ये XRDMP फाइल मांगेगा, और अगर डाउट हुआ तो रिव्यूअर सैम्पल भी मंगाएगा और आपकी फाइल देखकर वैसे ही सेटिंग करके एक्सपेरिमेंट करेगा तो आपसे सेव नहीं है। इसीलिए हमेशा चेंज करना, जो आपको चेंज करना है बैकग्राउंड पर हाई होगा, इसमें क्या होगा, आयरन होगा तब मटेरियल में, फ्लोरेसेंस भी होगा और डिटेक्शन भी होगा, और दोनों की एनर्जी सिमिलर है। तो फ्लोरेसेंस तो बैकग्राउंड बनाएगा, उसकी कोई पर्टिकुलर एंगल पर पिक नहीं होती ना एक्सर, तो सब एंगल्स पर फ्लोरेसेंस बराबर होता है, तो वो सिर्फ बैकग्राउंड बनाएगा, बैकग्राउंड हाई हो जाएगा, ठीक है। उसको सॉल्व करने के लिए पुराने ज़माने में मोनोक्रोमेटर्स लगा जो सिर्फ 8 kV को बाहर जाने थे, 7.1 को रोक लें, ठीक है। आजकल मोनोक्रोमेटर्स नहीं लगाने चाहिए। आजकल हम क्या करते हैं, डिटेक्टर की एनर्जी ट्यूनिंग कर सकते हैं। डिटेक्टर को हम बोलेंगे अभी डिटेक्टर 4 kV से 12 kV तक सब डिटेक्ट कर रहे हैं, बीच में है 8 kV, तो 50% इज 8 kV, और अभी असल में डिटेक्ट कर सकते हैं 2 to 14, दिस इज 0 to 100, बट हम लोग काम कर रहे हैं 25 to 70, और बीच में इज आवर इंटरेस्टिंग एनर्जी, बट हम कुछ लो एनर्जी और कुछ हाई एनर्जीज को भी डिटेक्ट करते हैं। लेकिन जब आयरन कंटेनिंग सैंपल होता है तो ऐसे केस में फ्लोरेसेंस एनर्जी भी इसी विंडो में अंदर आ जाती है, लेकिन इस विंडो को ट्यून किया जाता है। हम बोल सकते हैं कि हमारा एक्सपेरिमेंट 7.9 kV से शुरू होना चाहिए 12 kV तक, तो उस केस में आयरन फ्लोरेसेंस नहीं आएगा। लेकिन आयरन ही नहीं, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, कैल्शियम में 4 kV है, तो 4 kV से अगर ऊपर से करोगे तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। टाइटेनियम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ सी गैलियम इस 10.2, तो गैलियम अगर ज़्यादा है और हायर एनर्जी पर आपने 12 तक रखा है तो फ्लोरेसेंस आएगा। तो ये भी मैं टेबल दे दूँगा, जब आपको फ्लोरेसेंस की प्रॉब्लम हो तो आप हाई और लो एनर्जीज को ट्यून कर सकते हैं। कैसे ट्यून करते हैं, इन जनरल वी से यूज डिफॉल्ट, बट अदरवाइज वी कैन से लोअर एनर्जी ये रखो, हायर एनर्जी ये रखिए। तो हम टेबल देख के बोल सकते हैं हमारा ये एलिमेंट है, उसकी ये एनर्जी, हमें उसको नहीं चाहिए, तो हम वो वाला लेवल, लोअर एनर्जी लेवल या हायर एनर्जी लेवल चेंज करेंगे। और जब ये प्रोग्राम चलेगा तभी ऐसा होगा, बाकी प्रोग्राम, हर एक प्रोग्राम के अंदर ही पल्स हाइट डिस्क्रिमिनेशन PHD। तो कॉन्सेप्ट ये है PHD का कि जो डिटेक्शन होता है एक्सरे का, वो इलेक्ट्रिकल पल्सेस, पल्स की हाइट एक्सरे की एनर्जी पर डिपेंड है। तो बेसिकली एक्सरे फोटोन्स अपनी एनर्जी लूज करते हैं मटेरियल के अंदर, तो हाई एनर्जी फोटोन्स ज़्यादा अंदर तक जाते हैं, ज़्यादा टाइम रहते हैं, क्योंकि पल्सेस की हाइट ज़्यादा होती है, और कम एनर्जी के फोटोन्स कम टाइम तक रहते हैं, कम टाइम में एनर्जी डिसिपेट कर देते हैं, तो उनकी पल्सेस कम हाइट की होती है। तो हम एक बैंड पास फिल्टर बनाते हैं कि इस मिनिमम एनर्जी से इस मैक्सिमम एनर्जी तक हम डिटेक्ट करना चाहते हैं, तो उस बैंड पास फिल्टर को ट्यून कर सकते हैं फ्लोरेसेंस लेवल पर। कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे, कोई प्रॉब्लमेटिक एनर्जी का 6.4 है,
6.4 6.5 है इसमें, 5.8 है। तो इसको भी अगर हम करेंगे तो इसमें भी फ्लोरेसेंस दिखेगा, क्योंकि हमारा है 4 to 12। इसमें एक बार मैं विद फ्लोरेसेंस दिखा दूँगा, एक बार विदाउट फ्लोरेसेंस, तो आप देख लेंगे कि कैसे बैकग्राउंड कम की वजह से कुछ लैटिस प्लेन्स आपको ज़्यादा दिखेंगे। यूनिफॉर्म की जैसी है, फ्लेक्स है। तो क्या जब आप पाउडर बनाए, पाउडर प्रेस किया, ओरिजिनली तो रैंडमली ओरिएंटेड क्रिस्टलाइट था, एक क्रिस्टलाइट ऐसे बैठा था, एक ऐसे बैठा था, तो सारे लैटिस प्लेन्स को देखने की प्रोबेबिलिटी सेम थी, यानी सारी पीक्स को आने की प्रोबेबिलिटी सेम थी और उनकी ट्रू इंटेंसिटीज मिलती। लेकिन जब आपने प्रेस किया और अगर ये सारे प्रेस करने से अलाइन हो गए, अब आपको यही प्लेन दिखेगा, ये प्लेन नहीं दिखेंगे या कम दिखेंगे, तो इंटेंसिटीज ओरिजिनल नहीं रही। वहाँ पर हम जब पीडीएफ करते हैं तो हम इंटेंसिटीज को भी फिट करते हैं और अज्यूम करते हैं इंटेंसिटीज ट्रू है। तो बाकी सारे सैंपल होल्डर्स जो हैं इनमें प्रेफर्ड ओरिएंटेशन होता है, सिर्फ कैपिलरी में नहीं, इसीलिए कैपिलरी में पीडीएफ किया जाता है। तीसरा, पीडीएफ को हम प्रेफर करते हैं लो टेम्परेचर पे डेटा लें, क्योंकि थर्मल वाइब्रेशंस जो होती हैं उनसे पीक ब्रॉड होती है, वो मिनिमम चाहिए आपको, और उनके आफ्टर इफेक्ट मिनिमम चाहिए। इसीलिए तो 3 रिक्वायरमेंट्स हो गई, एक कैपिलरी, एक आपकी प्रेफर्ड ओरिएंटेशन नहीं होनी चाहिए उसके लिए, और तीसरा आपका ये चौथा रिक्वायरमेंट। पीडीएफ का ग्राफ आप देखोगे तो वो एक्स एक्सिस थीटा नहीं होता, क्यू वेक्टर होता है, स्कैटरिंग वेक्टर। क्यू डिपेंड करता है लैम्डा, क्यू की रेंज उतनी ज़्यादा होगी जितना लैम्डा छोटा होगा। लैम्डा छोटा यानी एनर्जी हाई, यानी हाई एनर्जी ट्यूब पर काम किया जाता है, कॉपर लो एनर्जी ट्यूब, ताकि क्यू ज़्यादा है। जितना क्यू ज़्यादा होगा उतना लॉन्ग रेंज ऑर्डर की इन्फॉर्मेशन मिलती है। और आपको तो अमॉर्फस में लॉन्ग रेंज ऑर्डर से ही मतलब है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर पे तो क्रिस्टलिटी मिलेगी अमॉर्फस के अंदर, लेकिन लॉन्ग रेंज ऑर्डर में ही तो अमॉर्फस नेचर मिलेगा, तो हाई एनर्जी ट्यूब से काम किया जाता है। ये सारी रिक्वायरमेंट्स इस मशीन में फुलफिल नहीं होती, इसीलिए यहाँ नहीं, लेकिन लेबोरेटरी डिफरेंट में कर सकते हैं। पेयर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मतलब पेयर ऑफ एंटिटीज का सिग्नल होता है, दो एटम्स का पेयर, अमॉर्फस में भी पेयर होते हैं, उनके सिग्नल आएंगे। ऐसे हम अमॉर्फस मटेरियल्स को स्टडी कर सकते हैं, वो डिफ्रैक्शन नहीं है, वो स्कैटरिंग है। पेयर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन तो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, मशीन ये रहती है, लेकिन आप स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करते हो, डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट। आप 1/4 लगानी पड़ेगी डाइवर्जेंस रेट, क्योंकि सैंपल छोटा है, और 13 mm का मास लगाना पड़ेगा। पहले डाइवर्जेंस रेट 1/2 थी और ये 20 mm, क्योंकि सैंपल बड़ा था। ये लेंथ बनाती है, ये विड्थ बनाती है, रेक्टेंगल बीम स्पॉट। जितना सैंपल बड़ा है उतना ही हम इसको बड़ा कर सकते हैं, सैंपल छोटा होता है तो हम इसको छोटा कर सकते हैं। तो इसकी कैलकुलेशन एक एक्सेल शीट में होती है। मतलब अगर हम जीरो बैकग्राउंड पे सैंपल लगा रहे हैं तो हमें छोटी रखनी चाहिए। नहीं, जीरो बैकग्राउंड होल्डर पर क्या है कि जीरो बैकग्राउंड होल्डर पर अगर एक्सरे आएंगी भी तो कोई सिग्नल नहीं आएगा, तो हम बड़ा कर सकते हैं। जीरो बैकग्राउंड होल्डर पे एडवांटेज होता है, लेकिन मटेरियल कम होता है, जितना मटेरियल कम होगा उतना सिग्नल कम होगा। ऐसे सैंपल होल्डर्स में मटेरियल ज़्यादा होता है, ये ठीक है, तो सिग्नल इसीलिए बूस्ट होता है क्योंकि मटेरियल ज़्यादा है डिफ्रैक्शन करने के लिए। स्लिट चेंज करने को नहीं बोला, क्योंकि मैं ये प्रोग्राम जो चल रहा है ये अज्यूम कर रहा है कि बड़ा सैंपल होल्डर जो उसके लिए बना हुआ है, ठीक है। अब मैंने चेंज कर दी, ठीक है। और बीम नाइफ भी लगाने को बोल रहा है, क्योंकि ये प्रोग्राम शायद स्टार्ट होता होगा लो एंगल पर, लेकिन लो एंगल का डेटा हम इग्नोर कर देंगे। लो एंगल पर अब बीम नाइफ ना होने की वजह से, एंटी स्कैटर से छोटी ना होने की वजह से बहुत हाई इंटेंसिटी आएगी, लेकिन वहाँ हमारी कोई पीक नहीं है, ठीक है, तो हम इग्नोर कर सकते हैं। तो ये एक बार खोलने को बोलेगा, चेंज करने को बोलेगा। आइडियली मुझे खोल के चेंज करके तब कंटिन्यू कर सकते हैं, उसके बाद मेजरमेंट शुरू करें और रेजिस्टेंस भी आएगा, ठीक है। तो सेकेंड टाइम एक तरह से ये हमारा टेस्ट प्रोग्राम हो जाएगा। इस डेटा के बेसिस पर मैं ठीक प्रोग्राम पैरामीटर्स ढूंढूंगा और उसमें फ्लोरेसेंस भी हटाऊंगा, स्टेप साइज भी ठीक होगा। अभी तो मैं गेस कर रहा हूँ कि मेरा स्टेप साइज ठीक होगा, टाइम पर स्टेप ठीक होगा, ठीक है। तो एक तरह से ये सैंपल पहली बार बनाया, पहली बार आप कर रहे हैं, आपको कोई पैरामीटर पता नहीं है, तो आप एक टेस्ट प्रोग्राम करो, फिर पैरामीटर ढूंढो, वो प्रोग्राम बनाओ और उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करो। अब वो जो प्रोग्राम बनेगा वो डिसाइड करेगा कि वो 5 मिनट में काम हो जाएगा या 30 मिनट में काम होगा, 8 मिनट की क्वालिटी के लिए। ये प्रोग्राम 7 मिनट्स का, एक हमेशा जब हम टेस्ट करते हैं तो थोड़ा फास्ट करते हैं, उसके बाद फाइनल प्रोग्राम बनाते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि हमारा कितना मिनट होगा। जो सैंपल ज़्यादा एसिडिक होंगे उसको कोरोट करते हैं सैंपल होल्डर। तो हर रोज़ शाम को कम से कम
सैंपल होल्डर्स को क्लीन करके रखते हैं ना, तो उससे अवॉइड वो तो हमें पता नहीं चलता है सैंपल कितना एसिडिक है और वो करोड़ कर देता है। तो आपको लोअर एनर्जी लेवल जो है 4 से इंक्रीज करके से 7 कर देते हैं। 7 पर मैग्नीज का फ्लोरेसेंस मिट जाएगा, फ्लोरेसेंस सिग्नेचर हट जाएगा, ठीक है। तो एक तो पीएचडी सेटिंग में ये चेंज करना है आपके प्रोग्राम में। तो आपका प्रोग्राम अगर ये मान लेते हैं तो इसमें ये 3.5 की जगह होना चाहिए सही। लोअर बाउंड 8 kV तो होना चाहिए, 8 kV तो कॉपर के अल्फा है, उसको तो हमें डिटेक्ट करना ही है। इतना नहीं चेंज करना कि 8 kV के बाद चला जाए। 8 kV के जितना पास में रहोगे उतना सिर्फ कॉपर के अल्फा डिटेक्ट होगा, लेकिन जितना आप विंडो को कम रखोगे उतनी इंटेंसिटीज भी कम आएगी। अभी इंटेंसिटी ज़्यादा है क्योंकि अभी एनर्जी विंडो भी ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको फिर से टाइम बढ़ाना पड़ेगा। ऑप्टिमाइज करने में कई बार 1-2 टाइम आपको स्कैन करना पड़ेगा, लेकिन एक स्कैन लेने के बाद ही आपको पता चलता है कि सही पैरामीटर क्या है। तो एक स्कैन आपका एनीवे फास्ट स्कैन लेना अभी देखिएगा कि सेकंड स्कैन जो मैं बनाऊंगा तो उसमें डेटा बहुत अच्छा है, क्लीन डेटा है। ये भी काफ़ी ज़्यादा नॉइस है। अच्छा, नॉइस असल में सिर्फ हमारे देखने की चीज़ है, नॉइस रियल में ज़्यादा कम नहीं होती है। पहले के तो मैं बता देता नॉइस है। सपोज नॉइस का लेवल इतना है, ठीक है। ये आप बोलोगे कम नॉइजी है और ये ज़्यादा नॉइजी है ना। आप लोग ये नॉइजी है, ये नॉइजी नहीं है, लेकिन दोनों में सेम नॉइज है। नॉइज सिर्फ हमें फील होती है। नॉइज मैक्सिमम मिनिमम से डिफाइन होनी चाहिए, ऐसे देखने से डिफाइन नहीं होनी चाहिए। ये स्टेप साइज छोटा, ये स्टेप साइज बड़ा, तो हमें लगेगा कि बड़े स्टेप साइज में कम नॉइज है, लेकिन ऐसा नहीं, नॉइज दोनों बराबर है। अब सैमसंग को ऐसे रखते हैं। अब डेटा ट्रांसफर सही, डेटा मैनेजमेंट में जाओ, एक्सपोर्ट में जाओ, और ये आपका डेटा था, इसको एक्सपोर्ट कर दो, ठीक है। इससे पहले आपका डेटा भी था, उसको भी एक्सपोर्ट कर लेते हैं, और मेरा भी एक सैम्पल था। ये आपका सैम्पल ये था ना, और मैडम का ये वाला था, इसको पहले ऑप्टिमाइज किया। ये आपकी शार्प पीक है, इसकी फुल विड्थ हाफ मैक्सिमम 0.09 है, तो 0.009 आपका स्टेप साइज होना चाहिए। 0.005 या 0.01, ये 0.009 के पास में ही है, 0.01 ये ठीक है, जो हमने लिया है वो ठीक है हमारा ऑलरेडी। और इसके अलावा आपकी पहली पीक, यहाँ पर भी कुछ फीचर है, तो मेरी हमें 12 से शुरू कर सकते हैं और हम 70 पे ख़त्म कर सकते हैं। ये एनीवे लो इंटेंसिटी कर सकते हैं, ज़्यादा हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। आप बोलो तो 50 पर ही खत्म कर सकते हैं, राइट। लेट्स टेक 70, ठीक है। तो 10 to 70 ये स्टेप से, और टाइम पर स्टेप जितना ज़्यादा देंगे उतना हमारा टाइम बढ़ेगा। अभी इस स्कैन में टाइम पर स्टेप था 23 की वजह से ये 9 मिनट का स्कैन, ठीक है। इन पैरामीटर्स के साथ ये 9 मिनट का स्कैन, तो इन पैरामीटर्स के साथ 9 मिनट का स्कैन हुआ। और अब हमने पीएचडी सेटिंग भी कम कर दी है, तो हमारी इंटेंसिटी थोड़ी वर्स हो जाएगी। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए हमें और थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। 12:30 हो रहे हैं ना, 15 मिनट में भी 20 मिनट का बना, 20 मिनट का बना देते हैं। तो अब हमने जो चेंजेस किए वो ये स्टेप साइज ठीक कर दिया। स्टेप साइज जो था वो हमें मिला कि ठीक है, अदरवाइज आप ऐसे ठीक कर सकते हो। टाइम पर स्टेप बढ़ा दिया, इससे अच्छा डेटा मिलेगा हमें, जो यहाँ पे था उससे अच्छा डेटा, और फ्लोरेसेंस रिमूव कर दिया। और अब हमने सही स्लिट लिख दी, पहले हमने ऐसी कटिंग कर दिया, अब सही जो स्लिट लगी हुई है वही स्लिट लिखी हुई है, 1/4 और 39। अब इस प्रोग्राम को सेव किया। अब यहाँ पर अगेन डेटा मैनेजमेंट में है, इस बार हमें इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट नहीं करना, इंपोर्ट। और आप यहाँ पर जब लगा के रखेंगे तो यहाँ पर लिखा रहेगा जो प्रोग्राम नया है, तो मैंने उसका नाम ऐसे रखा है 10 to 70 18 mm सैम्पल, ये 18 mm का होल्डर है और 20 मिनट्स इंपोर्ट होगा। एक बार इंपोर्ट हो गया तो उस लिस्ट में आ जाएगा मेजरमेंट। इस बार आपने सैम्पल दोबारा से रखा हुआ है,
इस बार आप ये वाला प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अब हमारा थोड़ा ऑप्टिमाइज्ड प्रोग्राम ये बोल रहा है कि क्योंकि लास्ट प्रोग्राम जो चल रहा था उसमें नोट डाउन हुआ कि हाफ गई, ठीक है। आइडियली हमें ऐसे चेंज करना चाहिए। तो हम अनलॉक करेंगे और यहाँ पर ये चेंज करेंगे, ठीक है। ऑलरेडी हम चेंज कर चुके हैं और हम बोलेंगे कि वी हैव चेंज। दिखाया भी ये लास्ट टाइम हुआ था। अब जो डेटा होगा उसमें स्टेप साइज ठीक है, टाइम टू स्टेप ठीक है। होपफुली 20 मिनट्स में आपको सिग्नल टू नॉइज रेशियो सारी पिक्स की 10 को क्रॉस कर देंगे। आप वेट कर सकते हो। अगर बाई चांस इस डेटा में अब आपको दिखता है कि नहीं और टाइम देना चाहिए तो फिर आप टाइम टू स्टेप और बढ़ा दो, सिग्नल टू नॉइज रेशियो बढ़ जाएंगे। अब ये जो रूल है 10 को क्रॉस करना चाहिए, ये बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल है। मेन कंसर्न ये है कि छोटी से छोटी पीक की शेप क्लीन होनी चाहिए ताकि आप उसको फिट कर सकें। लॉजिक ये है 10 को देने का। अगर सिग्नल टू नॉइज रेशियो 3 और 4 ही है लेकिन क्लीन शेप है तो आप काम चला सकते हो। वीट व्हील में बेसिकली फिटिंग करते हैं और फिटिंग के बाद आप हमेशा एरर प्लॉट को देखते हैं। आपके फिटिंग में कोई एरर नहीं होनी चाहिए। जब शेप ठीक नहीं होती तो एरर होती है। तो ये जो सारा हम कर रहे हैं वो इसके लिए ताकि एरर ना हो। लेकिन अगर आपकी शेप सारी क्लीन है जिसको आप फिट कर सकते हो कम सिग्नल टू नॉइज रेशियो में तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि तो हम इसी तरह से हम कभी कभी 2 मिनट के स्कैन में भी वेट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए मटेरियल हाईली क्रिस्टलाइन है। जितना ज़्यादा क्रिस्टलाइन होगा उतनी पीक लो कम मटेरियल में भी ज़्यादा अच्छी पिक करते हैं क्योंकि वो शार्प है। ठीक है, इस सैम्पल के बाद लंच कर लेते हैं, उसके बाद फिर दोबारा स्पिन नहीं करना चाहिए। स्पिनिंग से क्या है ना, एक दो इम्प्रूवमेंट्स होंगी स्पिनिंग से। एक सारा सैंपल कवर होता है। अगर सैंपल इनहोमोजेनियस है, सैंपल सर्कल है और मैंने रेक्टेंगल रिंग बनाई, मान लो यहाँ पर कोई फेज है जो मिस हो गई तो वो आएगी भी नहीं, स्पिनिंग में आ जाएगी। दूसरा, स्पिनिंग करने से इस प्लेन की प्रेफर्ड ओरिएंटेशन एवरेज हो जाती है। एक तरह से प्रेफर्ड ओरिएंटेशन की प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है। इंटेंसिटी जो आर्टिफिशियली कम ज़्यादा होती है वो ठीक हो जाती है। देखिए एक और प्रोग्राम में आप स्पिनिंग लगा के उसको भी देख सकते हो कि स्पिनिंग वर्सेस नॉन स्पिनिंग में डेटा ठीक होती है। प्रेफर्ड ओरिएंटेशन सैंपल में प्रेफर्ड ओरिएंटेशन, और ये सैंपल होल्ड में प्रेफर्ड ओरिएंटेशन को अवॉइड करने के लिए बनाया गया। प्रेफर्ड ओरिएंटेशन इसलिए होती है कि आप ऊपर से सैंपल करते फिर प्रेस कर देते हैं। प्रेस करने से क्या होता है कि क्रिस्टलाइट्स एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। ये जो डायरेक्शन है उसकी पीक बढ़ जाती है, बाकी डायरेक्शन की पीक बढ़ जाती है। तो दूसरा मतलब एक तरीका जो मैम को बताया था वो ये कि आप सैंपल भर के ऐसे दो ताकि आपको प्रेस ना करना पड़े। दूसरा तरीका ये खोलो, तो ये टॉप सरफेस है, उल्टा रखो इसको। आप सैंपल भरो, उसको प्रेस करो, तो प्रेफर्ड ओरिएंटेशन वो पीछे दो। जब सैंपल बनेगा ऊपर प्रेफर्ड ओरिएंटेशन नहीं, जहाँ डिफ्रैक्शन होगा वहाँ प्रेफर्ड ओरिएंटेशन नहीं। ये इस सैंपल होल्डर भी पॉसिबल है कि इतना सैंपल होना चाहिए। असल में ऐसा है कि लोग जब सैंपल बनाते हैं तो वो कुछ और कैटेगराइजेशन टूल को ध्यान में रखे बनाते हैं। जैसे मान लो उनको स्प्रेड करना है तो उनको पता है कि स्प्रेड में इतना सैंपल लगेगा तो वो इतना सैंपल लेके आते हैं, उसी को यहाँ भी ले आते हैं। आप बोल सकते हैं कि XRT के लिए अच्छा होगा आप 5 ग्राम 10 ग्राम सैंपल दें तो वो उतना लेकर आएंगे। जिंक ऑक्साइड पे करे तो कितना भी काम। ये मैं PDF आपको दे दूँगा, आप चाहो तो प्रिंट आउट भी आपने सामने रखो कि कौन सा एलिमेंट है ये लोग बता दें तो आप उसके साथ प्रेस कर सकते हैं। और ओवरऑल सिग्नल टू नॉइज रेशियो ज़्यादा इंप्रूव होगा क्योंकि सिग्नल उतना ही बैकग्राउंड और नीचे आएगा तो वो रेशियो बहुत इंप्रूव होता है। तो पहले जो सिग्नल टू नॉइज रेशियो मिल रहे थे उनसे अच्छे सिग्नल टू नॉइज रेशियो मिलेगा। ये सामने वाले रिजल्ट है तो इसका ठीक है। पहले भी यही था तो बस इसका यही ऑप्शन है, मिनिमाइज विंडो रहेगा। मिनिमाइज विंडो में ये आपके काम का नहीं है। हाँ, बेसिकली ये विंडोज़ है, आपको ज़्यादातर ये दिखता नहीं है क्योंकि यूजुअली ऐसे मोड में होता है जिसमें स्क्रीन में प्रोग्राम चल रहा होता है। लेकिन कभी जब ये हमारे इंजीनियर्स और हम लोग सिस्टम लेवल पर एक्सेस करते हैं तो हम लोग यहाँ पर जाके फाइल एक्सप्लोरर है सारी फाइल्स, तो आपका जो डेटा है
ये आपकी पेन ड्राइव, आपका डेटा असल में इस फोल्डर डेटा कलेक्टर के प्रोग्राम्स में सारे प्रोग्राम होते हैं जो आप बनाते हो, आपको तो वहाँ पर ही दिखता है, लेकिन असल में यहाँ पर इस फोल्डर में जो कुछ होगा वो वहाँ दिखेगा। फिर इधर से हम एडिट वगैरह कुछ नहीं कर सकते नहीं, ना, आपको करना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये सिस्टम को चेंज कर देगा। ठीक है, तो ये एक्सेस सिर्फ सुपर यूज़र को पास होना चाहिए, बाकी यूजर्स को सिर्फ ये करना है। ये आपको फ्लोरेसेंस रिमूवल का अंतर यहाँ क्लियर है कि कितना, और उसी हिसाब से फीचर क्लियर हो गया। ये फीचर जो बिल्कुल क्लियर नहीं था वो क्लियर है, और ज़्यादा टाइम दोगे तो और ज़्यादा इसकी ग्रोथ होगी और ये क्लियर दिखेगा। ठीक है, और अब हमने उसको भी ऑप्टिमाइज़ किया था, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट, क्योंकि यहाँ के बाद कोई फीचर क्लियर नहीं। तो इससे ये वाला जो सेकेंड डेटा है ये है ना आपका, तो इससे कुछ स्लाइड साइज अगर निकालें 0.24 इसी में 0.24 सेकंड वाले में कर लेते हैं। 37.3 होगा, 35.5 से 37। ये चीज़ में डाउट है, जैसे काफ़ी बार हम स्कैन अभी जैसे हमने पैरामीटर्स चेंज करे हैं तो पीक की फुल विड्थ हाफ मैक्सिमम भी चेंज हो गया, तो हम रिलाई कौन से वाले पे करेंगे? जहाँ पर आपकी अच्छी शेप होगी उसी को रिलाई करेंगे ना, पहले परफेक्ट शेप नहीं किया तो शेप क्योंकि अभी सक्सेस शेप हो जैसे अभी भी ये वाला यहाँ पे ये जो पिंस होते हैं ये वाला परफेक्ट नहीं है अभी। परफेक्ट स्मूथ अभी भी नहीं है, क्योंकि और ज़्यादा टाइम देंगे और ज़्यादा इंटेंसिटी होगी तो और ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। बट फिटिंग स्मूथ, फिटिंग जो हो रही है, फिटिंग असल में आप हाई स्कोर में देख सकते हैं, किसी डेटा को हाई स्कोर में देख सकते हैं। सर्च करें और फिर उसको फिट कर दें। जैसे ये फिट करे तो ये फिटिंग करिए, ठीक है, फिटिंग अच्छी है, बस इसमें एसिमेट्री ठीक से फिट नहीं है। एसिमेट्री को फिट करने के लिए एसिमेट्री फंक्शन को सूडो वाइड फंक्शन एसिमेट्री का ही फंक्शन यूज करके फिर फिट करेंगे स्प्लिट विड्थ एंड शेप। ठीक है, और अब आप बोलो कि इसको यूज करें, अब एसिमेट्री भी फिट होगा पहले से बेहतर। अब जब सब अच्छे से फिट हो गया तो टिक लिस्ट में आपको फेवरेट बेल्चम्स दिखेंगे। ये बेस्ट नंबर है क्योंकि ये रियल फिटिंग से है। ठीक है, डेटा कलेक्टर में वो फिटिंग कर रहा है लेकिन आपको दिखा नहीं रहा, यहाँ आप रियल में देख पा रहे हो। इसी को एक्सपोर्ट करके आप अपना एक्सेल में सूडो वाइड के इक्वेशन लिख के खुद भी फिट करके निकाल सकते हो। लेकिन अल्टीमेटली ये जो नंबर्स आ रहे हैं 29 ये ज़्यादा रिलायबल है क्योंकि ये इस फिटिंग से और आप देख रहे हो कि फिटिंग अच्छी है। और इस 29 में से वो वाला माइनस करना होगा स्टूडेंट को। ये देखिए ये एरर है, हाँ। ठीक है, तो एरर जितनी कम होगी उतनी फिटिंग अच्छी है। ठीक है, तो आपने जो नापा है वो यहाँ नापा है और यहाँ पे फिटिंग अच्छी है, तो उस हिसाब से आप इस नंबर पे रिलाई कर सकते हो। बट ये फुल हाफ फुल विड्थ हाफ मैक्सिमम, फुल विड्थ हाफ मैक्सिमम। फुल का मतलब हाफ मैक्सिमम। आई डोंट थिंक ये टैग से ठीक कर रहा है। फुल विड्थ हाफ मैक्सिमम यही से निकालते हैं जो मैक्सिमम के हाफ पर आती है विड्थ में। हाँ, ये उतनी हैवी नहीं है, 0.24 हैवी नहीं है, यहाँ पर ही 0.2946 है, उसके हिसाब से 0.2946 के हिसाब से आता है। चलो कैलकुलेट 2946 उसके हिसाब से आपका 29.8 नैनोमीटर है। दूसरा शेरर कैलकुलेटर एक एक्यूरेट साइज कैलकुलेशन नहीं है। शेरर कैलकुलेटर क्या बोलता है कि इस डायरेक्शन में ये साइज है, जैसे मान लीजिए ये शेप है तो स्लाइड की और ये डायरेक्शन है, तो ये इस डायरेक्शन में इतना है, इस डायरेक्शन में इतना है, इस डायरेक्शन में इतना है, तो ये तो सिर्फ आपको ये बताते हैं कि इस डायरेक्शन में इस स्लाइड का साइज कितना है।
ये कैसे पहुंचे विलियमसन हाउस से? तो विलियमसन हॉट प्लॉट क्या करते हैं, जैसे ही आप फिटिंग करते हैं विलियमसन हॉट प्लॉट ऑटोमेटिकली फिट हो जाता है। तो आपको कुछ दिखता नहीं है, तो आपको व्यू में जाके एक्टिवेट करना। हाँ, तो बस हमने फिटिंग करी, फिटिंग के बाद व्यू में गए और विलियमसन हॉट प्लॉट को एक्टिवेट कर दिया। अब आपको टिक लिस्ट में नीचे इसको ऐसे ड्रॉ करना है, ये आपका विलियमसन हॉट प्लॉट। अब इस विलियमसन हॉट प्लॉट में भी देखिए कि ये डेटा आउटलायर है, ठीक है। ये पीक आपके, ये जो पीक है, ये वाली पीक, ये आपके डेटा को खराब कर, मतलब ये इस लाइन का स्लोप से ही आपका साइज और स्ट्रेन निकलेगा ना। सर ये वाली है कि हाँ। यहाँ पे है? हाँ, तो ये जो इसकी शेप अच्छी नहीं है, इस वजह से ये एक आउटलायर दिख रही है। तो आप यहाँ से ये भी बोल सकते हो कि इसको एक्सक्लूड करो, कैलकुलेशन से हटा दो, ठीक है। बाकी जो है ये आउटलायर्स नहीं है, आप डिसाइड कर सकते हो। और ऐसे जब चेंज करोगे तो रीकैलकुलेट होगा, तो रीकैलकुलेट करके यहाँ पर आपकी कैलकुलेशन जाएंगी। ये कैलकुलेशन विलियमसन हॉट प्लॉट से आएंगे। शैडो कैलकुलेशन में दो प्रॉब्लम्स हैं, एक डायरेक्शन की पीक दिखाता है वो, दूसरा वो अज्यूम करता है कि कोई स्ट्रेन नहीं है। यहाँ पर ये स्ट्रेन को और साइज से इफेक्ट को रिप्रेजेंट साइज क्या है? यंगस्टर्स में है तो 135 नैनोमीटर्स। बट आई थिंक 135 से अबाउट तो हम कहते भी नहीं कि स्लाइड्स होते हैं। नहीं 100 नैनोमीटर के बड़े भी स्लाइड तो माइक्रोन साइज में भी होते हैं। नहीं, नैनो क्रिस्टल्स ये कौन से क्रिस्टल स्लाइड का जो बात करते हैं हम नैनो रेंज की बात करते हैं। अगर उससे आप एप्लीकेशन से होता है, वो एप्लीकेशन से होता है। मान लो आपको फॉस्फर मटेरियल है, तो आप इंटरेस्टेड होते हो 2 नैनोमीटर से छोटे में, क्योंकि 2 नैनोमीटर से छोटे में क्वांटम वैल्यू निकालते हैं। तो वो एप्लीकेशन, आपकी एप्लीकेशन क्या है, उसके हिसाब से आपके लिए एक ही साइज इंटरेस्टिंग है, बाकी साइज इंटरेस्टिंग है। अब जैसे हम जब शेडर से निकाला अगर मान लो कि तो वो वाला आ रहा था 29 नैनोमीटर। बट जब क्योंकि ये वाइड है, ये शार्प है, इससे निकालोगे तो डिफरेंट आएगा। ये देखो ये कितनी बट अगर sharp हम है। एक बार शेडर से साल का एवरेज लिखता है सारों का एवरेज मीनिंगलेस है, क्योंकि ये विलियमसन हॉट प्लॉट एवरेजिंग नहीं है। ये तो अगर नहीं है एवरेजिंग मीनिंगलेस इसीलिए होगी क्योंकि आप देखो ये साइज इतना, ये साइज इतना और ये साइज इतना, एवरेज से टोटल साइज नहीं मिलेगा। एवरेजिंग यहाँ पे मीनिंगलेस होती है, क्योंकि इस वैल्यू और इस वैल्यू का एवरेज इसका साइज नहीं होगा। जैसे अभी हमने इस वाले वीडियो से निकाली इसमें अपने इंस्ट्रूमेंट वाले को माइनस किया या नहीं? हाँ, इसमें क्या होता है कि जब आप चलाते हो तो आप यहाँ पर डिफ़ॉल्ट्स में इंस्ट्रूमेंट ब्रॉडनिंग डिफाइन कर सकते हो। अदर इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट सेटिंग्स में गोनीमीटर का रेडियस, ये अपने आप डेटा, इसी डेटा फाइल से इसने उठा लिया है। तो 0.4 कहाँ डिफाइन होती है? एंड इसको हमें रो फाइल इंपोर्ट करानी होती है। हाँ, आपको प्लॉट करने के लिए चाहिए तो रॉ फाइल, नहीं तो जो भी ग्राफ है उसको आप सेव एज कर सकते हो बहुत सारी तरीके से। तो हाई स्कोर के अपने फॉर्मेट है HPF, ये हाई स्कोर में खुलते हैं। और अगर आपको इसको प्लॉट करना है तो आप इसको ASCII फाइल में ले लो, ठीक है। और अगर आपको जीसस में एनालिसिस करना है FXYE फाइल बना सकते हो आप, ठीक है। और अगर एज एन इमेज लेना है इसको एज ए फोटोग्राफ, तो JPG, PMP, WMF फाइल बना सकते हो। हाई स्कोर के अंदर एनालिसिस HPF फाइल से, HPF फाइल शेयर करोगे तो दूसरे लोग भी हाई स्कोर की फाइल्स खोल सकते हैं। और जितनी अच्छी फिटिंग होगी उतने अच्छे आंसर्स होंगे, ठीक है। तो फिटिंग इंप्रूव कर सकते हो। अभी जैसे यहाँ पे इंटेंसिटी फिट नहीं हो रही है, विड्थ फिट हो गई और एसिमेट्री भी बहुत अच्छी फिट नहीं हो रही, तो आप यहाँ पर जाके कुछ चीज़ें चूज़ करके देख सकते हो। जैसे अभी हम सूडो वाइट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि प्योर वाइट फंक्शन में भी ज़्यादा अच्छे से फिट हो जाए, तो आप चेक कर सकते हो। ये बस फर्स्ट फिट हो रहा है, एरर बढ़ गई, अकॉर्डिंगली हमारी एरर से इसमें भी वैल्यूज चेंज हो जाएगी, ठीक है। जो फिटिंग होगी उसके हिसाब से विलियमसन आउटपुट होगा। इनफैक्ट अब ये पॉइंट, इस फिटिंग में ये पॉइंट आउटलायर नहीं है, ये पॉइंट आउटलायर है। यहाँ पर कोई पीक को छोड़ी है तो इसकी फिटिंग अच्छी नहीं होगी आउटलायर। तो ये डिपेंड करता है, इस तरह से आप प्ले ऑन करके देख सकते हो कि कौन सा फंक्शन ज़्यादा अच्छा है। कहीं कहीं पर पियर्सन 7 ज़्यादा अच्छा फिट करता है, ज़्यादातर सूडो वाइट ठीक है। कैलकुलेटिव इक्वेशंस से फिट कर सकते हो एडवेंचर्स को, ये अच्छी फिट की है। थॉमसन स्कोप से भी फिट हो जाती है। तो हम ट्रीटमेंट भी करेंगे ना, तब भी यही सब काम करेंगे। और फिंगर बॉक्स से भी अच्छी फिट होती है, जिसमें हमें बेस्ट यही है बेस्ट, और यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी हम सॉल्वर को भी और स्ट्रिक्ट बना सकते हैं। अभी हम
मैक्सिमम 100 इटरेशन जा रहे हैं और उसके बाद बंद कर देते हैं। मान लीजिए जो भी आंसर जितना भी अच्छा है आ गया नहीं आ गया, जैसे हम ये बोल सकते हैं कि हम उसका टाइम बढ़ा दें और उसकी इटरेशन नंबर्स बढ़ा दें और टॉलरेंस घटा दें। तो ज़्यादा टाइम तक तब तक इटरेट करता रहेगा जब तक उसको आंसर नहीं मिलेगा। कभी कभी इससे आपकी फिटिंग इंप्रूव हो जाएगी। ये तो सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन है ना, वो तो एरर को कम करता जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमें उसे रोकना है। तो हमने रोकने की कंडीशन पर लूज कर दी कि हाँ भाई 100 इटरेशन के बाद रोक दो, जैसा भी आंसर आए कोई बात नहीं। अब 100 की जगह हम 1000 तक जा रहे हैं, 10,000 तक जाते हैं, लेकिन टाइम भी उतना ही ज़्यादा लगेगा, लेकिन फिटिंग ज़्यादा अच्छी होगी उसकी। दूसरा अभी जो फिटिंग हो रही है उसमें बैकग्राउंड ठीक से फिट नहीं हो रहा है, ठीक है। ये भी इफेक्ट करता है कि पी की शेप कितनी अच्छी फिट होगी। तो बैकग्राउंड के पॉलिनोमियल्स चेंज कर सकते हैं, बहुत सारे टाइप के पॉलिनोमियल्स हैं। कुछ पॉलिनोमियल ज़्यादा अच्छे से फिट होते हैं दूसरे पॉलिनोमियल से। ये चीज़ें मैं बताऊंगा जब हम गिट बिल्ड करेंगे तब। ये बेस्ट फिटिंग है, इसमें एरर सबसे कम है। और ये इनफैक्ट ये अब आउटलायर नहीं है, इसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। अब तो आउटलायर बस यही पॉइंट दिख रहा है और ये पॉइंट दिख रहा है। ये आपका साइज होता है लगभग 102 नैनोमीटर्स का पार्टिकल। ये हमारा फिल्टर है, निकल फिल्टर, मतलब बीटा फिल्टर्स को हाँ। यहाँ से निकल जाता है, यहाँ से अंदर जा सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास डाइवर्जेंस स्लिट है। ये निकल के कैसे दिखती है देख सकते हैं? क्योंकि इसमें से लाइट जाती है। अच्छा जी। इसके बारे में थोड़ी स्टोरी है वो मैं बता देती हूँ। उसके बाद हमारे पास ये वाली स्लिट है जो हमने अपनी पैलेट्स सैंपल के लिए यूज़ की थी ना, वो वाली रेक्टेंगुलर सीट वाली। Yes, ये दोनों। उसके बाद ये दोनों लगेंगे, जैसे सर ने बताया ही था, योर सैंपल शेप और डाइवर्जेंस स्लिट, ठीक है। और दादा से यहाँ पे बीम नाइफ लगती है, वो हमने रखी हुई है। बीम नाइफ ये वाला जो है वहाँ पे पड़ी है, दिखाती हूँ। ये रही, ठीक है। अगर सैंपल के थोड़ी दूर रखना है तो ऐसे, और अगर सैंपल के पास रखना है वो उसकी नहीं समझ नहीं आया। अच्छा ये विड्थ है क्या? अलग-अलग? अकॉर्डिंग टू आप सैंपल के, अच्छा कि सैंपल मतलब कितना दूर कितना पास रहे। कितना पास रखना है, हम्म। ठीक है। और इसमें क्या स्लिट्स हैं अलग-अलग ना? बस ये है, अगर हमने फिल्टर एक तरफ लगा रखा है ना बीटा का, दूसरी तरफ लगाना है तो ये है, एक तरफ लगा के ही काम। मतलब एक साइड जो है सोर्स का, एक साइड डिटेक्टर का। बट जरूरत नहीं है ना, जब आपने एक बार फिल्टर कर दिया है तो वाई नेसेसरी दूसरी से इसलिए से संभाल के रखो। और ये जो है इधर स्लिट्स है हमारे पास, ये कॉपी का फिल्टर ये एटीन्यूएटर है, इसकी आपको इसका है, इसका नहीं है। ये जब इंजीनियर्स अलाइन करते हैं तब उनको जरूरत पड़ती है, आपको जरूरत है। और ये हमारे पास स्लिट्स हैं 1.1/8 की, 6 की, 16 की, 32 की, यानी ये 1/2, 1/4, 8, 16, 32, बस इतनी है हमारे पास। ये क्या चीज़ बताती है ये नंबर जो है? यही तो जब हमारी अरेंजमेंट होती है ना कि हमारा कितना बड़ा डाया है सैंपल का, तो उसके लिए हम विद रिस्पेक्ट ऑफ इसकी देखो यहाँ देख कैलकुलेशन सकते हो। सर बता देंगे कैसे करेंगे। आप इस एक्सेल शीट में अपना स्टार्ट एंगल डालते हो और अपनी हाँ। डाइवर्जेंस स्लिट डालते हो, जैसे 1/2 है, और मास डालते हो, तो ये कैलकुलेट करके बता देता है कि आपके सैंपल के ऊपर बीम इस लेंथ की है और इस विड्थ की है। फिर ये आपको बता देता है अगर आपने 27 mm का होल्डर लिया हुआ है तो दैट इज़ ओके, क्योंकि ये लेंथ भी उससे छोटी है, विड्थ भी उससे छोटी है। ये जो लेंथ और विड्थ इस सैंपल पर इतना बीम पड़ रही है, ठीक है। आप इसको चेंज करके चेक कर सकते हैं। अगर मैं इसको 1 बना दूँ, अब देखो ये लेंथ बड़ी बन गई, तो वो बोल रहा है रिड्यूस, तो ये क्लू देता है कि ये 1 डिग्री ठीक नहीं है, 1/2 डिग्री करो, ठीक है। अब ये भी देखो कि एंगल डिपेंडेंस भी होती है। सेम स्लिट छोटे एंगल पर बड़ी लेंथ बनाती है ना, लेकिन बड़े एंगल पर छोटी लेंथ बनाएगी। लेंथ चेंज होती है एंगल से भी, तो एंगल भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर मैं इसको 5 डिग्री कर दूं तब यही स्लिट मुझे छोटी करनी पड़ जाएगी। अब मैं 1/2 के साथ नहीं कर सकता, अब मेरे को 1/4 के साथ करना होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये 25 होता, अब मेरी लेंथ बहुत छोटी है, सैंपल 27 mm का है और लेंथ मेरी 2 mm है, 3 mm है। अब मैं इसको बड़ा बना सकता हूँ। इवन सबसे बड़ी स्लिट 1 डिग्री की भी इतना ही बनाती है लेंथ, ठीक है। तो ऐसे आप अपने स्टार्ट एंगल के हिसाब से डाइवर्जेंस स्लिट और मास चूज कर सकते हैं। ऐसे ही मास अगर चेंज होता है तो भी विड्थ चेंज होती है। देखिए 20 mm के मास से 18 mm विड्थ बन रही है, लेकिन 13 mm के मास से 11 mm बन रही मास्क मतलब है। एक डाइवर्जेंस स्लिट है, एक मास्क है। अच्छा, ये mask। डाइवर्जेंस स्लिट है, ये मास्क है। तो इसकी उससे भी तो ये लेंथ बनाती है, ऐसे बीम जा रही है, तो ये लेंथ बनाएगी और ये विड्थ बनाएगी रेक्टेंगल जिस की। तरह का ये लेंथ, ये विड्थ, तो ये जितना बड़ा होगा, जितना बड़ा होगा उतनी लेंथ भी बड़ी होगी, विड्थ भी बड़ी होगी। हाँ, नहीं
इनकी कैलकुलेशंस आप इस एक्सेल शीट से कर सकते हैं, मैंने आपको देखा ये पेन ड्राइव के अंदर ही है, ओके सर। आप इसको सेव कर लेना। That's it. मतलब कि सैंपल के डायमेंशन के हिसाब से और एंगल इनिशियल एंगल कितना है? फोल्डर के तो ये हिसाब से 27 mm का है, हम्म, दूसरा वाला 18 mm का है, हम्म। और जब ये वाला 18 mm का है, ये वाला हम्म। जब आप जीरो बैकग्राउंड होल्डर यूज़ कर रहे हो तो वो भी 27 mm का ही है, क्योंकि उसी डायमेंशन का होगा। हम्म, एक्सरेज अगर जीरो बैकग्राउंड होल्डर पे पड़ती है तो हमें कोई फर्क नहीं, हाँ, तो हम मैक्सिमम इरेडिएशन ही करते हैं। हाँ, ये ओके सर। अभी ये वाले सैंपल, अभी कौन सा मेरा वाला सैंपल चलाना है मुझे, हाँ, तो सर, उसके आप लिए samples कर सकते हैं। हाफ डिग्री लगा हुआ है ना, हाफ डिग्री हाँ, हाफ डिग्री एंड 20 mm लगा हुआ है। ठीक, सैंपल होल्डर का है ये, ठीक है ना, 3 सैंपल हैं, मेरे को ये करने हैं बस, फिर मैं डेटा लेके चला जाऊँगा। आज के लिए मुझे इतना ही सिखाना था, बाकी कल हम एनालिसिस सीखेंगे। ठीक है सर। मैं कभी कभी पूरा काम एक दिन में कर लेता हूँ, लेकिन एक दिन में ज़्यादा हो जाता है तो मैंने एक सिंगल पॉइंट पे इस इधर मेजरमेंट करते हो, ठीक है। ये आपका इस तरह से आपकी बीम होती है, बीम का सेंटर होता है, ये मैच करता है। अरेंजमेंट का नाम क्या होता है सर? ब्रैग ब्रेंटानो ज्योमेट्री, ब्रैग ब्रेंटानो, ठीक है। ब्रैग ब्रेंटानो ज्योमेट्री में ऐसे काम होता है, और इसी के ऊपर डिफ्रैक्टोमीटर का कंस्ट्रक्शन होता है, क्योंकि ये एक सर्कल होता है, इसको कोनियोमीटर सर्कल बोलते हैं। तो सैंपल उस सर्कल के सेंटर में होता है। अच्छा, तो ठीक। इस ज्योमेट्री में सैंपल का सही हाइट पर होना बहुत क्रिटिकल है। अगर सैंपल सही हाइट पर नहीं हो, मान लो यहाँ पर हो, मान लो यहाँ ना होके यहाँ पर है, तो क्या होगा? गलत एंगल रिपोर्ट होगा, लोअर सारी पीक शिफ्ट हो जाएंगी लो एंगल की। अगर सैंपल सही हाइट से थोड़ा नीचे है और सही हाइट से थोड़ा ऊपर है तो ऊपर हो जाएंगी शिफ्ट। तो पूरा डिफ्रैक्टोग्राम अगर किसी केस में आपको पता है कि ये एंगल होने चाहिए, हाँ, और shift हो रहे हैं। सारी पीक्स एक ही डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही है, तो उसका मतलब सैंपल गलत हाइट पर था। अब सही हाइट क्या है आपको तो कुछ दिख नहीं रहा ना, वहाँ हाँ, पे इमेजिनरी लाइन है, तो सही हाइट ढूंढना पहले बहुत कमरसम टास्क था। तो हम क्या करते थे, एक स्टैंडर्ड लेते थे, स्टैंडर्ड को हाइट चेंज करते करते, जैसे सिलिकन का मुझे पता है 28.442 पर पीक आती है, तो सिलिकन का सैंपल लिया और उससे सही हाइट निकाली पहले से, सही हाइट पर ही वो सही एंगल पर पीक आएगी, उस हाइट को नोट डाउन कर लिया, अच्छा, ठीक है। फिर अपना सैंपल लगाया, फिर उसको उधर स्कैन किया। तो पहले ये बड़ा काम लगता था क्योंकि सही हाइट निकालना है, फिर सिस्टम को भी कैलिब्रेट करना, हाँ, वो सब, तो उसमें बहुत टाइम लगता था। अब ऐसा हो गया कि सारा सिस्टम कैलिब्रेटेड है, आपको कैलिब्रेशन की जरूरत नहीं। आप कैलिब्रेशन चेक कर सकते हो सिंपली पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन को चेक करो, इसको रन करो, इसकी पीक 28.44 पर आ गई तो सिस्टम कैलिब्रेटेड है। और सिस्टम को एक बार कैलिब्रेट कर रहे हैं तो हमने सिस्टम ऐसे बनाया कि यू डोंट लूज कैलिब्रेशन ओवर मेनी ईयर्स। एक सिस्टम हम 7-8 साल से हमने फैक्ट्री में रखा हुआ है, हर रोज़ यूज़ होता है, हर रोज़ उसकी कैलिब्रेशन चेक होती है, आज तक उसकी कैलिब्रेशन खराब नहीं है। अगर मैं मैन्युअली एक साइड हिला दूँ अपने हाथों से तब भी तब भी नहीं होगी। आपको हाइट भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। हमने सिस्टम ऐसे बनाया है कि सैंपल होल्डर का टॉप सरफेस सही हाइट है। ये सैंपल होल्डर जब इंस्ट्रूमेंट में जाता है तो ये सही हाइट है, तो आपके लिए कितना आसान हो गया, आपको सैंपल भरना है कंप्लीटली, इससे तो ऊपर आप नहीं सही होना हाइट पर, चाहिए। ना सैंपल ऊपर होना चाहिए ना सैंपल नीचे होना चाहिए। तो ये किया तो आपका ये झंझट ही खत्म हो जाएगा, आपको सही हाइट ढूंढने की जरूरत ही नहीं एक स्टैंडर्ड से, तो वो सारा टाइम सेव हो गया। आपको सीधा अपना सैंपल करना है, तो सैंपल बनाते हुए बस उसकी हाइट का ध्यान रखना है कि ये हाइट सही हाइट मतलब टॉप सरफेस, इसमें सही, इसीलिए आप ग्लास लाइट लगा रहे हो ना जब, तो टॉप सरफेस मिल रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जब आप कोई भी सैंपल करो तो इस हाइट से एक्सीड नहीं करना, ना नीचे रहना चाहिए ना ऊपर रहना। अगर सैंपल पतला है तो नीचे क्ले लगाकर फिर प्रेस करना। मान लो एक सॉलिड आ गया, शीट आ गई है, पतली शीट आ गई और उसका एक्सआरडी करने को बोला, उसकी हाइट वो पतला होने की वजह से ये 2 mm की कैविटी है, 2 mm से कम है, तो आप कैसे करोगे, नीचे क्ले लगा दो और फिर उसको प्रेस कर दो, सही हाइट पर आ जाएगा। अगर ग्लास लाइट लगा के ग्लास लाइट इतनी पतली मिलनी मुश्किल है, क्ले ज़्यादा आसान है। तो ग्लास लाइट की फिक्स वेट है, हाँ, इसीलिए। क्ले को आप किसी भी वेट के साथ, कर सकते हैं। और बच्चों वाला क्ले यूज़ करना, नेचुरल क्ले मत यूज़ रबर जैसा जो आता है। पीक दे देगा नेचुरल क्ले। और दूसरा नेचुरल क्ले मॉइस्चर के साथ फूल जाता है, वो गलत हाइट पर चला जाएगा कुछ टाइम बाद, है ना। डबल साइडेड टेप भी इसलिए यूज़ नहीं करते, डबल साइडेड टेप जब आप दबाते हो तो अलग हाइट पर होती है, छोड़ने पर अलग हाइट पर, इसलिए नेचुरल क्ले नहीं यूज़ करना, डबल साइडेड टेप नहीं यूज़ करना। सिंपल कि बच्चे कहते हैं 10 रुपये का आता है, किसी भी स्टेशनरी नहीं करता है, वो वाला क्ले यूज़, और वो आपका सालों साल चलेगा। नहीं वो ठीक है, क्ले के साथ ये। नेचुरल के साथ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब ये काम करना आसान है क्योंकि सिस्टम को ऐसा बना दिया है।